Yes, yes. Yeah. Yeah, magic dust today I did, Hmm. and it was amazing. Like from morning, I was busy with my work, but my family member, my husband and my son helped me a lot, a lot. Okay. Wow. मैजिक डस्ट सुबह उठते ही कर दिया था, Huh. जो भी मिल रहा है उन पे कर रही थी. स्कूल में भी मेरा बहुत अच्छे से काम हुआ, एंड इवन एट होम. Okay. So Wonderful. now Very I'm nice. out for Hmm. dinner Hmm. with my family. Okay. Okay. Very nice. Very good. So I Enjoy just told yourself. that I'll just share, and I will be out from the class today. Okay. Okay. Perfectly. Enjoy your meal. Do your gratitude for the meal, and just have good, fun, positive talks when you're having your meal. Yes. Okay. Yes. Chalo, Okay. thank Thank you. you. Thank you, Bye. and enjoy yourself. Bye bye. Yeah. 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 Very nice. So anyone else who did the practice, and how did you feel after the practice? Anyone wants to share? So Khushi, how are you? Good, very Good, good. And you are ma'am. doing the practices along with us? Ma'am, I want to share something with Yes, you. please. But I want to see a big smile first. Yes, yes, that's Khushi. Yeah. So basically today I was just going through YouTube. So, and I remember we did this practice cues given by the nature. We will do it over here also. Yeah. So over there was this quotes from Buddha to lead a happy life, where there was this quote number one. It was said that you should always, that humans should not have any keep any expectations from anyone, because the more expectations you're going to have, the less happier you're going to be. And then I just realized that this friend about I spoke to you, I just realized that I kept a lot of expectations from her. So maybe that could be one of the reason. I mean, it's obviously not her fault entirely. Maybe that could also be one of the reasons that I kept a lot of expectations that she should stand up for me, she should do this, she should do that. Yeah. So that I realized, and then I just thought that I should be forgiving and forgetting, because if I don't forgive others, then when I make any mistake, I can't even expect others to forgive me. Yes. I then I just remembered that in Shakespeare, Merchant of Venice, there was this, in that chapter there was this quote where this girl tells, where this priest tells this girl that if you are not going to have mercy on others, then others will also not have mercy at you. So Yeah. then I just thought that way, and then yeah, Merchant of Venice, and I thought, yeah, this is absolutely right. And now instead of thinking about those bad things, I should think about what I want, what kind of lifestyle I want to lead. Yeah. Like even in the movie Secret, it was shown that instead of thinking about the bad things which happened, we should think about the good things we want, so that we get it. Yes, yes. Very nice. And Very nice, Khushi. Yeah. I'm I very thought happy. that way. Yeah. Yeah. So see, what I'm seeing is like, on and off, you are thinking about what you did for her and how she has not responded and stood up for you. If you want her to change, this book is just telling us that expectations what you covered on your own is wonderful. That's a very big fact. इसी का We पैसा keep expecting. And सामने वाले को पता ही नहीं होता है what you are expecting. So what you have to do is you first do the day 3 practice for her every day. Okay. If you want to be on good terms with her, if you want a good relationship, do the day 3 practice. Every day you have to do it. जैसे आप 10 blessings लिखते हो ना, वैसे ही दिन में कोई भी टाइम निकालो. Just write 10 things about her. Keep a photograph in front of you and do that. ठीक है? Why? Because each time you are sharing about her, it's kind of like a not a positive tone. So of course वो भी add होता जाता है. So you write 10 things about her. जैसे नहीं एकदम जैसे बोलते दवाई की तरह, या स्वीट डिश की तरह या वर्कआउट की तरह. You do that every day. ठीक है? And it will definitely change. And if it doesn't, then some things are not meant to be. Yeah, maybe your time with her was only till that time. Whatever you shared with her, you have to move on. If you and first you have to smile more, you have to be happy. If you're happy with yourself, good things will keep coming to you. In the power book we have read this, that if your feelings are good, if you are above the line, yeah, then only good things will come to you. Okay, so it's very important you stay positive, be happy,
Okay, and keep doing the practices as the book is telling us, and whatever you are reading and seeing, it's wonderful. Keep doing that as well. Okay? The more positive you are, the happier you will be. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. And see, while you were speaking, I also got a cue what I have to do today. So I will share that as well. Yeah. Thank you. And ma'am, there was this another point where Buddha said that we should not follow 4 C's in our life, which is don't compare, don't complain, don't cry, and don't criticize. And 1 C which we should focus on is compliment. Give compliment to others, give compliment to yourself. Okay. Wow. Very good. So you should write it down, make it a quote and post it in the group. Okay. Or print it and post it on your wall also. Okay. So do that. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Yeah. Yes, wonderful. So that was our dear Kushi. And anyone else who wants to share, how did you feel about after doing the magic dust, and how many people did you sprinkle it on? Neelam ji, would you like to share? Yes. आज मैंने किया था और हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ उसको करने से। आपने किसके किस पे किया? जैसे मैं आज ड्राइवर को किया कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप मुझे ले जा रहे हैं गाड़ी में। और मेरा सर्वेंट को वो आयरन करके लाया कपड़े, तो उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोला कि तुमने आयरन किया कपड़ों को। ओके। इस तरह बहुत सी चीजों को सुबह से मैं बोलती जा रही थी। जैसे वहाँ पे हमारे एक ब्राह्मण आती है, बेगम बाजार हमारा घर है, वहाँ पे भी मैं आज गई थी। हाँ। तो वो आई, उसने चाय बनाया, तो उसको चाय के लिए थैंक यू कहिए। फिर मेरे हाथ में एक बैग था, गाड़ी से उतरी और वो मुझे मिल गई, तो उसको मैंने थैंक यू किया कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि आप मुझे मिले, तो मुझे वेट उठा के ले जाना नहीं पड़ा, आप लेके चली गई। इस तरह बहुत सुबह से काफी चीजों में जो भी मेरे कांटेक्ट में हो रहे थे, जो मेरा काम कर रहे थे, मैं उनको धन्यवाद करती जा रही थी। मेरे मेड को कि बहुत अच्छा बाथरूम क्लीन किया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। ओके, वेरी नाइस। और कोई आपको जब याद आए कि मे बी कोई किसी ने आपको शॉप में हेल्प की, या कोई असिस्टेंट ने आपको कोई दवाई चाहिए या कुछ भी आपको चाहिए, उसने आउट जाके आपको। आज मैं बैंक गई थी। हाँ। उन्होंने मुझे फॉर्म वगैरह कुछ फॉर्मेलिटीज थी वहाँ की लॉकर के लिए, तो उसके लिए भी उन्होंने मुझे हेल्प किया। हाँ। तो उसके लिए मैंने उनको थैंक यू किया। वंडरफुल, वेरी नाइस, वेरी गुड। थैंक यू फॉर द शेयरिंग, थैंक यू, कीप डूइंग इट। देखिए, बुक सारी प्रैक्टिस बोलती है कि आज ही करो, बट वो काइंड ऑफ एक्सपेक्ट करती है एंड इम्प्लाई करती है कि आपको अगर रोज ऐसे ऐसे मैजिक चाहिए तो आप रोज करिए ये सारी प्रैक्टिस। ठीक है, सो यू कैन कंटिन्यू डूइंग इट एवरी डे। आज आपने घर के स्टाफ पे किया है, कल आप पुलिसमैन पे कर सकते हैं, कल जो रोड्स क्लीन करते हैं उन पे कर सकते हैं। कोई आपको दिखाई पड़े, कोई कंस्ट्रक्शन साइट आप गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, आपको कोई दिखाई दे कि वो बिल्डिंग में काम कर रहा है, आप उस लेबर पे कर सकते हो। कोई धूप में कोई फ्रूट वाला खड़ा हुआ है, या डाब वाला, या जूस वाले लोग खड़े रहते हैं, आपने देखा कि उतनी गर्मी में वो मेहनत कर रहे हैं, यू कैन स्प्रिंकल इट ऑन देम ऑल्सो। ठीक है, नहीं हो तो जैसे उन्होंने बोला आप घर में भी मेंबर्स के ऊपर कर सकते हो। ठीक है, आपने देखा कि बच्चा आपका थोड़ा सा ज्यादा नॉटी हो रहा है, तो आपने मन में उसके ऊपर इमेजिन किया कि उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया आपने मैजिक डस्ट, आप वैसे कर सकते हो उसके ऊपर। ठीक है, सो यू कैन, देयर इज नो एंड कि आप कितना ज्यादा उसको कर सकते हो। अच्छा, एक बात पूछनी थी कि उस पर्सन को डायरेक्ट मेरे को बोलना चाहिए या मैं खाली बोल सकती हूँ? देखिए, बुक बोल रही है आप बोलोगे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप नहीं बोल पा रहे हो तो आप मन में सोचो कि उसके ऊपर वो गिर रही है और आप मन में उसको थैंक यू बोलो। हर आप गाड़ी में बैठे हो तो आप जाके तो पुलिसमैन को नहीं बोलोगे थैंक यू, तो आपको इमेजिन करना है कि आपने उसको थैंक यू बोला है। इमेजिन, माने मन में तो आपको थैंक यू बोलना ही है उसको, और इमेजिन करना है कि उसके ऊपर वो मैजिक डस्ट गिर रही है। हाँ, मैजिक डस्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैजिक डस्ट आपके ऊपर गिरी। थैंक यू सो स्वीट, थैंक यू सो मच। एक मुझे भी शेयरिंग करना है। हाँ, एकदम बोलिए। आई थिंक सुषमा जी ने अपना हैंड रेज किया है, पहले सुषमा जी कर लें चैतर जी। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली। ओके, यस यस सुषमा जी, यू हैव शेयरिंग, you have raised your hand, you don't have a sharing, you have to unmute. हाँ, मैंने भी 4 दिन से किया। जो दीदी मेरे यहाँ काम कर रही थी उनसे, और डाब देने वाला है वो, और जो अमेजन का लेके उनको भी किए, और एक फ्लावर जो लेके आते उनको भी किए, और सबको फ्रूट्स अमृत सबको दिए। बोले भाभी आज तो बहुत अच्छा मुझे। हाँ,
और आज मेरा मैजिक बुक भी आ गया। Wow, very good, very good. And you are looking very pretty. Oh, thank you. Thank you so much. Yes, excellent. अब आपने देखिए 4 को तो ऐसे फिजिकली कर लिया है, 6 को आपको और करना है, ठीक है? तो आप सोच लीजिए, मे बी आपकी ब्यूटिशियन कोई आती होगी घर में, ठीक है, या आयरन मैन आता होगा, या आपकी बिल्डिंग में नीचे आयरन मैन, आयरन मैन जो भी माने लाइक सॉरी, आपका जो भी होगा ना, क्या बोलते हैं उसको, धोबी, यस धोबी। You understood ना? Not Robert Downing Jr. Iron Man or धोबी, yes. बहुत अच्छा फीलिंग्स आ रहा है मेरे को, मतलब कुछ दिनों से बहुत पॉजिटिव वाइब। Imagine Iron Man really coming and taking our clothes and he's like really washing it and ironing it. Yeah, good one. Yes. So thank you and keep doing whatever you are doing, Sushma ji. Keep, आप जितना practice करोगे उतना अच्छा, ठीक है? And yes, Chaitra ji, let's take your sharing as well. Then we'll start with the warm up. And there's one, yeah, नीलम जी को भी बोलना है. Yeah, yes, बोलिए. आज मैंने आज मेरे ऑफिस पर तो सॉरी बोला क्योंकि मेरी गलती थी। हाँ। मैंने वो पॉइंट आउट करा के दिया। हाँ। ये ऐसा था। तो आई सेड सॉरी भाई, आगे से नहीं करूँगा। Okay, very nice, very good. बाकी सब तो मैं 10 तो किया ही था, बट वो तो अलग हो गया। हाँ। ये मैंने उसको अभी आप नॉर्मली वही लोग गलत करते और अपन ही चिल्लाते रहते। मेरी गलती थी, उसने मुझे बताया कि आपने गलत किया करके। मैंने उसने गलत किया नहीं बताया, उसने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। Okay, very good. This was new ना? Earlier, what would you have done? हाँ ठीक है। हाँ, मैंने उसको सॉरी नहीं बोला रहता है ना। अभी वो गलती मैंने बहुत बार की है ना। मेरे रात को मैं अगर लेट तक ऑफिस में हूँ तो खिड़की उड़की, मेरे केबिन की खिड़की खुली रह गई है, कोई भी अंदर आ सकता है। तो वैसे अगर उसने किया रहता तो मैं उसको बहुत झाड़ देता। या फिर ये मैंने भी जैसे अगर पहले भी 1-2 बार हुआ है तो मैंने हाँ ठीक है भैया ओके कर क्या बताता है वो कि खुला छोड़ दिया था, दरवाजा खुला छोड़ दिया था, खिड़की खुला छोड़ दिया था वगैरह। लेकिन मैंने उसने वो ही लिख के भेजा मेरे को, सर वो खुला छोड़ के रह गया था खिड़की वगैरह आपका। मैंने बोला ओके सॉरी, आगे से नहीं होगा। ओके, वेरी नाइस। हाँ, वेरी गुड। ऐसा घर में भी हम लोग को करना है, ठीक है? सिर्फ ऑफिस में नहीं, घर में भी कुछ गलती हो जाए तो सॉरी बोल के करना है हम लोग को, ठीक है? या यस नीलम जी, थैंक यू फॉर द शेयरिंग चैत्र जी। एंड यस नीलम जी, यू हैव अ शेयरिंग एज वेल। आज का पूरा दिन बहुत अच्छा निकला, फील गुड वाली फीलिंग रही पूरे दिन। द बेस्ट थिंग इज दिस, सबसे पहले मैंने खुद को ब्लेस किया, आफ्टर दैट टू यू माय मेंटोर, और उसके बाद तो थ्रू आउट द डे। ओके, ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग्स। यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमको लगता है इसीलिए मेरा ना जब मैजिक सेशन करते हैं ना, मेरा दिन बहुत अच्छे जाते हैं जनरली, माने लाइक सुपर अच्छे हो जाते हैं। आई थिंक इसीलिए ना कि आई कीप ऑन डूइंग द सेशंस, यू नो, पीपल are like, everyone is so nice. I feel very good, very blessed. Thank you so much, Nilam ji. Thank you. Yeah. Always. Yeah. So I think it's time. Acha, who wants to read today? I can. Okay, बिल्कुल. Anyone? अच्छा, नीलम जी आप एक बार पढ़ चुके हैं. If anyone else wants to read who has not read it, they can read. Otherwise, नीलम जी आप पढ़िएगा, ठीक है? Let's start with the warm up and then we'll do the reading. Yeah, so please switch on your cameras and unmute yourself and we'll do it a little faster, okay? Because that is the concept. Because देखिए ये क्या है, ये हम ऐसी मस्ती के लिए नहीं करा रहे, फीलिंग तो अच्छी आती है, बट जब आप ऐसे ऐसे करते हो ना तो हमारी जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो और थोड़ा सा फंक्शन अच्छा करने लगता है, ठीक है? तो ये करने से, या आप सुबह उठ के जंपिंग करो, स्किपिंग करो, वो अगर नहीं कर पा रहे हो, या कभी भी आपको मूड थोड़ा सा डाउन लगे, बिलो द लाइन जा रहे हो, ठीक है, तो आप वॉशरूम जाके जोर जोर से ऐसे ऐसे कर लीजिए, ठीक है? मैंने लाइक लिटरली, हम मजाक में नहीं बोल रहे हैं, आप बिल्कुल ऐसे ऐसे कर लीजिए। हाँ, तो आपको ऑटोमेटिक अच्छा लगने लगेगा। आप एग्जाम के लिए जा रहे हो या कोई गेस्ट आने वाला है एंड यू आर फीलिंग अ लिटिल एंजाइटी या कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है, डू दिस। हाँ, ऐसे तो ये बोलते हैं कि आप जंपिंग करने लगो, बट हर जगह तो हम लोग ऐसे जंपिंग नहीं करने लगेंगे अनलेस आप टॉयलेट जाओ और जंपिंग करो, बट वो भी आई थिंक अभी नहीं लेना चाहिए हम लोग को ये सब टाइप के रिस्क बाथरूम में जाके। तो आप जस्ट ऐसे ऐसे करने लगो, ठीक है? एंड यू ट्राई इट आउट। आप एक दिन आपको मन है, आप मन में 10 लिटिल फिंगर्स कर लो, ठीक है? नहीं तो जस्ट ट्राई इट आउट, इट डज वंडर्स। हमने ट्राई किया हुआ है इसलिए आपको बोल रहे हैं, ठीक है? सो द फास्टर वी डू इट द बेटर यू विल फील। या एक जंपर, यस, इट्स लाइक, यू नो, हाँ, आप बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करिए, ठीक है? सो 1 2 3 स्टार्ट।
10 little Ten fingers, Ten little toes, 2 little ears, and 1 10 little little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. nose. Yes, yes, done. Someone was very fast. Yes, very good. वो first आ गया आज, हाँ? ठीक है. Yes. Yeah. So I am sharing the screen and we will start with amazing chapter. This is one of my favorite chapters. वो इसलिए favorite है कि ये माने ये तुम हम रोज ही करते हैं और भी चीजें करते हैं, but ये actual में बहुत अच्छा chapter है. Yeah. Please. Who will start? I think आप ही पढ़ लीजिए और किसी ने volunteer नहीं किया है तो एकदम आप ही पढ़िए. आज आपका ही reading का day है. Thank you. Yeah, thank you. Oh, sorry, मैंने आपको शायद भूल से म्यूट कर दिया. आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज. Day 11, a magic morning. Yeah. When you arrive in the morning. Just 1 second, we'll discuss the photo once. Yeah. हाँ. So the chapter's name is A Magic Morning. हम सबने सीखने को भी देख लिया. नहीं भी देखी है तो भी हम लोग को इसलिए पता है कि जब हम सुबह उठते हैं, कोई दिन अगर अपन लेट उठते हैं और हमको कहीं जाना होता है या घर में भी बच्चों का एग्जाम है या हस्बैंड को ऑफिस जाना है या घर पे कोई है, मेड आई नहीं आई, एंड इफ यू आर अ लिटिल लेट इन गेटिंग अप, तो हाउ डू यू फील? यू फील रश्ड अप. और उस दिन इनवेरिएबली ऐसा मेरे संग तो हुआ है कि सब कुछ धीरे धीरे लेट होता जाता है और हम और ज्यादा हैसल फील करने लगते हैं. लगता है कि ये क्या हो रहा है, सब कुछ आज गड़बड़ कैसे हो सकता है. ऐसा हुआ है आपके संग कभी कि लगता है सब कुछ आज उल्टा चल रहा है? हाँ, मेड भी उस दिन लेट आ जाती है. मे बी आपने रोटी बनाई होगी, वो भी थोड़ी सी मे बी जल गई या देर हो गया, आटा गीला हो गया. आप तैयार होने गए तो वो जो आप पहनना चाहते थे ड्रेस वो आयरन नहीं थी. आप लाइनर लगाने गए तो लाइनर भी टेढ़ा हो गया. आप जो फाइल ले जाना था वही मे बी भूल गए. तो ऐसी बहुत सारी मेरे संग ऐसे पहले काफी हो चुका था. ठीक है. तो और कोई दिन ऐसा भी होता है कि आप ऑटोमेटिक सुबह एकदम फ्रेश होते हैं. हाँ, घर में सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक चल रहा है एंड यू आर फीलिंग सो नाइस एंड हैप्पी. एंड आप कहीं भी पहुंचे तो लगता है यार आज का दिन तो मेरा बेस्ट डे था. एंड यू आर ऑल स्माइल्स एंड हैप्पी फोन करके एंड यू आर इन दैट जोन. तो अब रॉन्डा बर्न ने हमको ये बताया है कि जो आप सोच रहे होते हो वही होता जाता है ना. सो इफ यू आर फीलिंग गुड, इफ यू आर फीलिंग हैप्पी, तो आप वैसी ही चीजें अट्रैक्ट करोगे जो आपको और हैप्पी एंड और गुड फीलिंग्स देंगे. और उसका उल्टा भी सही है. अगर आप नेगेटिविटी में उठ रहे हो, आपको लग रहा है रश्ड अप है, लेट हो रहे हैं हम, तो वैसी ही चीजें आपके लाइन में होती रहेंगी. और ये तो हमको 100% हुआ है. जिस दिन आपको लेट होता है उस दिन आपको सारे सिग्नल्स मिलते हैं. हाँ, आपकी गाड़ी भी कहीं उसको उसी दिन ड्राइवर को उसमें पेट्रोल या डीजल भी डलाना होता है. ऐसा हुआ आपके संग? आप अगर बिल्कुल आप थोड़ा सा लेट हुए कि आपकी फ्लाइट आपको पकड़ना है या आपको स्टेशन जाना है, उस दिन लगता है कि अरे आज हम लेट हो गए, सब कुछ सारे सिग्नल मिल गए, कोई मे बी कोई प्रोसेशन भी हो जाएगा. तो ये क्या हो रहा है? जब हम लोग पहले से ही नेगेटिविटी या ऐसा सोच लेते हैं तो हम ही वो सिग्नल यूनिवर्स को दे रहे हैं. एंड यूनिवर्स क्या करेगा? जो हम चाहते हैं वही जो हम बोल रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं वही हमारे रास्ते में देता जाता है. ठीक है. तो ये यूनिवर्स कितना काइंड है. बट हम लोग क्या करते हैं? हम बोलते नहीं आज का तो यही खराब है. अननोइंगली वी हैव अट्रैक्टेड दैट इन आवर लाइफ, इन आवर डे. या एंड ईच डे इज लाइक अ लाइफ. आप हर दिन ऐसे उठोगे तो हर दिन ऐसा होगा. देन यू से ना वो तो बहुत अनलकी है. हाँ, उसके लाइफ में सब कुछ उल्टा होता है. हम वो कह रहे हैं बट कितने बार हम लोग खुद ही सोच लेते हैं ये पूरा हफ्ता ही ऐसा गया, ये साल ही खराब था, पत्री दिखानी पड़ेगी पंडित जी को. यू डन ऑल दैट. तो अब रॉन्डा बर्न हमसे कह रही है कि अगर हमारे दिन की शुरुआत ही अच्छी हो, बिकॉज़ द चैप्टर्स नेम इज अ मैजिक मॉर्निंग, तो हमारा दिन बहुत अच्छा होगा. आज का दिन अच्छा होगा तो डोंट यू थिंक आई विल ट्राई एंड मेक एन एफर्ट एटलीस्ट कि कल की मॉर्निंग भी मेरी वैसी हो ताकि कल का दिन भी अच्छा हो. हाँ? तो अब ये दिन स्टार्ट कैसे अच्छा करना है और कैसे पूरा दिन अच्छा रखना है, दिस इज व्हाट रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस. एक तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ना कि आप जब उठ रहे हो तो आप अपनी सांस देख रहे हो, कौन सी सांस चल रही है. या एंड उससे जो करना है वी विल डिस्कस दैट अगेन आफ्टर वी कंप्लीट द रीडिंग. या सो नीलम जी प्लीज. अच्छा सॉरी, द फोटोग्राफ. अब इस फोटोग्राफ में देखिए दिस इज ऑफ कोर्स अ टॉयलेट. बाथटब है, मैजिक डस्ट यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है, सनलाइट आ रही है. या एंड यू आर थिंकिंग आजकल टाइम कहाँ है किसके पास सुबह सुबह बाथटब में जाके चिल करने का. हाँ, कि बैठ के आप लाइक दिस इज व्हाट वी आर सेइंग ना, बाथटब में आप यू आर रीडिंग अ बुक, यू आर लिसनिंग टू सॉन्ग्स. हाँ, बट अगर हम लोग की जो भी मॉर्निंग का जो फर्स्ट जगह है वो कौन सी होती है? मोस्टली टॉयलेट्स ही होते हैं. या तो अगर आप अपनी मॉर्निंग स्टार्ट ही ऐसे करोगे, कैसे?
ऑफ कोर्स ग्रैटिट्यूड से ही करना है हम लोग को, बिकॉज द बुक इज ओनली टॉकिंग अबाउट ग्रैटिट्यूड. इफ वी आर स्टार्टिंग आवर डे इन ग्रैटिट्यूड, आप लोग अभी तो हम वैसे ही कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, बट और ज्यादा इससे क्या करना है कि आपका पूरा दिन मैजिकल हो जाए. या सो लेट्स फाइंड आउट. या when you arise in the morning, think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love. Marcus Aurelius, Roman 121 to 180, Roman emperor. Yeah. So now Marcus Aurelius is telling us that when you arise in the morning, think of what a privilege it is to be alive. ये तो हम लोग को सदगुरु ने पहले बता दिया है कि अगर हम उठे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है कि हम सुबह उठ गए हैं आज. हाँ, सिर्फ उठ गए हैं वो भी सिर्फ ब्लेसिंग नहीं है कि आप सोच सकते हो. आप सोच सकते हो. हम लोग ने ब्लेसिंग में आई थिंक काफी जनों ने लिखा होगा कि ये ब्रेन हमारा इतना अच्छा है. आप लोगों ने लिखा होगा, राइट? That we can think, we can analyze, we can judge, we can create, we can. माइक म्यूट हो गया आपका. ओ म्यूट हो गया. नहीं तो इट्स शोइंग म्यूट क्या? नो. ओके. सो ये सारी चीजें जो अपन कर सकते हैं टू लव, या ये सारी चीजें अगर अपन कर रहे हैं मींस इट इज लाइक अ प्रिविलेज टू अस. एंड जब हमसे ये बोला जा रहा है व्हेन यू अराइज इन द मॉर्निंग, अराइज किसके लिए अपन बोलते हैं? सन राइजेस, मून राइजेस. कभी आपने सोचा है व्हेन यू अराइज इन द मॉर्निंग? कभी आपने सोचा है ऐसा? हम लोग उठ गए हैं, हम लोग जग गए हैं, व्हेन वी आर अवेक, हम लोग हमेशा ऐसे बोलते हैं. बट हर सुबह जब अपन उठते हैं, अगर आज से हम लोग ऐसा सोचें कि आज हम उठे हैं, दिस इज माई फर्स्ट डे. Okay, this is the day when I will change my destiny. This is the day which will be a super blessing, which will precede my any day in the future, and it will be awesome. अगर हम हर दिन ये सोच के उठें तब और भी अमेजिंग हमारी लाइफ होने वाली है. ठीक है, कि कल जो सुबह हम उठने वाले हैं, दैट इज द फर्स्ट डे ऑफ माई न्यू फ्यूचर, दैट इज द फर्स्ट डे ऑफ माई ब्लेस्ड लाइफ. अगर हम ऐसा सोच के हर दिन उठेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. आपने देखा होगा टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, इस टाइप के बहुत सारे कोट्स फॉरवर्ड्स आते हैं. तो क्या आप उसको एक्चुअल में पढ़ते हो या उसको एक्चुअल में समझते हो कि क्यों बोला जा रहा है? वो सब इसीलिए कि अगर आप हर दिन ये सोच के उठो कि टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ. या सो इफ यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, इफ यू स्टार्ट टॉकिंग लाइक दैट, then we are creating amazing days in our life. Yeah, and एक दिन से आपका वीक बनता है, आपका मंथ, लाइफ. That is how it happens. Yeah, so let's read. The easiest and simplest way to ensure that your day ahead will be filled with magic is to fill your morning with gratitude. When you incorporate gratitude into your morning routine, you will feel and see its magical benefits throughout the whole day. Yeah, तो अभी ये कह रहे हैं कि to ensure, माने ensure मतलब कि almost एकदम गारंटी कि आपका पूरा दिन अच्छा होएगा, और ना कि सिर्फ अच्छा होगा, it will be filled with magic. हाँ, and what is magic? कि आपने जो सोचा और वो हो गया, जो आपकी ड्रीम थी वो हो गया. It's like everything is going how you have planned it. ठीक है, उसको करने के लिए हमको क्या करना है? We have to start our morning with gratitude. अब मॉर्निंग मतलब ये नहीं कि आप 5 बजे उठे, ग्रैटिट्यूड करिए और वापस सो गए. नहीं, जब आप उठे, ठीक है, whenever you get up, whenever it's your morning, कोई 6 बजे उठ रहा है, कोई 4 बजे उठ रहा है, कोई 11 बजे उठ रहा है, आप जब उठे that is your morning. आपको वो अपने मॉर्निंग रूटीन में अगर हमने ग्रैटिट्यूड इनकॉर्पोरेट कर लिया तो पूरा दिन हमारा मैजिकल होएगा. Okay, so let's read. Each morning is full of opportunities to give thanks, and it doesn't slow you down or take any extra time, because you can do it naturally as you go about everything you do. There is an added bonus to filling your morning with gratitude, because your daily routine are the times when you can harm yourself the most by thinking negative thoughts without realizing you are doing it. There is no room for harmful negative thoughts when your mind is focused on looking for things to be grateful for. After this practice, you will go into day feeling much happier and more confident that the day ahead will be great. And that's when you will see the magic happen before your very eyes. Yeah. तो अभी आप देखिए, अभी जब आप सुबह उठते हैं, ठीक है, आपने ब्लेसिंग्स तो लिख ली, उसके बाद आप नॉर्मली कैसे
क्या थॉट्स आते हैं आपके मन में? नीलम जी आप बताइए, आप जब सुबह उठते हैं तो आपके मन में कैसे थॉट्स आते हैं, आप क्या करते हैं? अभी मैजिक सेशन के पहले वाले बताइए, अभी तो थोड़े थोड़े सबके चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मैं शुरू से थोड़ी पॉजिटिव रही हूँ प्रिया जी। ओके ओके वंडरफुल। हाँ, फ्रॉम लास्ट 10 years। हाँ अब मेरी लाइफ स्टाइल कुछ ऐसी है कि मैं रांची में रहती हूँ, झारखंड रांची में, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड नहीं है, माय सन इज एट मलेशिया, माय डॉटर गॉट मैरिड। तो ओके ठीक है, द लाइफ इज वेरी कूल एंड पीसफुल। तो सुबह से उठ करके वो ब्लेसिंग्स 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 में ही समय निकलता है। वाओ ऑसम ऑसम। हम बताते हैं हम कैसे उठते थे। हम सुबह उठते थे, कोई कोई दिन उठता था ओहो फिर से वही एक्सरसाइज, कोई नहा धो पूजा करो ऑफिस जाओ, ये कोई लाइफ है? आज इस क्लाइंट से मिलना है, अब क्या होएगा? हाँ, कभी आप निकलो रूम से तो देखो कि अरे आज तो कुक आई नहीं अभी तक, माने और लेट हो जाएगा। तो आई एम जनरली आई यूज्ड टू मेनी अ टाइम्स, आई विल नॉट से एवरी डे बट मेनी अ टाइम्स दिस वाज माय थॉट। अब 10 मिनट्स लेट उठे हैं तो इसका मतलब ये वाली एक्सरसाइज कम करना पड़ेगा, या आज हेयर पैक नहीं लगा पाएंगे, यू नो दिस वाज माय थॉट। अच्छा आज तो ट्यूसडे है, मतलब ये भी करना है वो भी करना, यू नो आई वुड कितने बार ऐसा, कभी आप निकले रूम से तो आपने देखा वो ये यहाँ पड़ा हुआ है, कपड़े भी हमने ऐसे नहीं किए, यू नो ऐसे थॉट्स पहले ज्यादा आते थे। या किसी ने कुछ बोल दिया तो वो बॉदर करने लग रहा है, या आई वाज थिंकिंग अबाउट समथिंग दैट हैपेंड यस्टरडे, ऐसे मेरे थॉट्स ज्यादा आते थे। या आप घर में आप देखो आप क्या करते होगे, मे बी आप घर से अपने रूम से निकले, आपने देखा कि बच्चों ने सामान जो रात में इधर उधर छोड़ दिया है, मे बी दही में जामुन लगाना भूल गए, तो एवरीथिंग इज प्लेइंग ऑन योर माइंड व्हेन यू नो व्हेन यू जस्ट गॉट अप। या आपने देखा कि नहीं एसी नहीं ऑफ था तो रूम बहुत ठंडा हो गया, या आप बाथरूम में गए देखिए किसी ने ऑलरेडी गर्म पानी खत्म कर दिया है, यू नो। सो इस टाइप की चीजें जनरली बॉदर करती हैं, जब बॉदर करती हैं तो यू आर ऑन दैट नेगेटिव ट्रेल कि यू नो नीलम जी यू आर अलोन, आप घर में अकेले हैं तो स्टाफ होगा मे बी तो आप थोड़े कूल हैं। या जब घर में 2-3 जन रहते हैं तो थोड़ा सा तो एडजस्टमेंट, ये जब तक ब्लेसिंग्स के बारे में नहीं सोचो तो थोड़ा सा आई गेस इट्स अ लिटिल चैलेंजिंग, दैट्स व्हाट आई फील। ठीक है, तो जो एंड एक्सक्यूज मी, जैसे देवर की फैमिली है पूरी यहाँ पे। ओ ओके 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 यस तब ठीक है। हाँ तब तो आप कभी भी आप ब्लेसिंग्स हैं, दैट्स ऑसम, लाइक यू आर रियली अ पॉजिटिव पर्सन। तो जनरली कुछ ऐसा हो जाता है ना कि ये सामान यहाँ क्यों छूट गया, जैसे यू नो मॉम से तुमने इसको अंदर नहीं रखा, तुमको कहा था ये यहीं छूट गया, सारी जिम्मेदारी घर की मेरी ही है, यू नो ऐसा हो जाता है। तो अगर आप सुबह उठ के पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचो या ग्रेटफुल रहो, ठीक है, विदाउट लेटिंग एनी नेगेटिव थॉट एंटर इन योर माइंड, दैट इज व्हेन द मैजिक विल स्टार्ट। अदरवाइज कुछ ना कुछ ऐसे थॉट्स आते ही रहते हैं कि अरे जामुन नहीं लगा, छोले नहीं भिगोए, ठीक है, यू नो आज छोला बनना था, इस टाइप के अगर आप थॉट सोचते रहते हो, पॉजिटिव नहीं सोचते हो तो पूरा दिन थोड़ा सा ऐसे ऐसे जाने लगता है। या तो अब हमको रोंडा बन कह रही है कि सुबह की जो टाइम होती है, for 2 reasons it is very very important that we be in gratitude. One is that you have to start your day in a positive note so that we attract good things. और अगर आप नेगेटिव में होते हो तब क्या होता है, there is a second reason. एक तो क्या होगा कि आप ठीक है आप न्यूट्रल चल रहे हो तो कोई बात नहीं, जैसे दिन है वैसे ही आपके चल रहे होंगे। अगर आप नेगेटिव में चले जाते हो, ठीक है, तब पूरा दिन आपका वैसे ही होने वाला है, बिकॉज वो एक के बाद एक आप खुद ही उसको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपने लाइफ में। एंड इफ यू आर पॉजिटिव then we are seeing the magic happen, she's telling us right before our very eyes. Why is she saying that magic is happening right before your eyes? माने आपने सोचा और वो हो गया, ऐसा होता है। आपने सोचा कि हाँ आज मेरे को मूढ़ी खाने का मन है और आपको घर में ही किसी ने बोल दिया कि आज चलो आज मूढ़ी पार्टी करते हैं, ठीक है, ऐसा होने लगता है। हाँ आप लाइक पीपल हैव शेयर्ड इन दिस ग्रुप ओनली, माने पिछले मैजिक सेशन में बहुत लोगों ने ऐसा शेयर किया, ठीक है, और आप भी शेयर करोगे इफ यू आर एक्चुअली थिंकिंग ऑफ समथिंग एंड यू हैव बीन ऑन अ हैप्पी एंड पॉजिटिव जोन, आपके लाइफ में भी ऐसे ही होएगा। या सो ज्योति जी हैज अ शेयरिंग, ज्योति जी we'll take it after the reading, okay? Yeah, so please read. When you wake up to the new day today, before you move, before you do a single thing, say the magic words, thank you. Say thank you for the fact that you are alive and that you have been given another day of life. Your life is a gift. Every day is a gift. And when you really think about it, it's inconceivable that any of us would wake up in the morning without giving thanks for another day. If you think a new day isn't such a big deal, then just try missing one. It doesn't matter how sleepy you are or if your alarm has woken you up for work or you have slept in during the weekend. The moment you wake, say the magic word, thank you,
for another day of your life. So now if we look at this, अगर हम लोग जब हम लोग पॉजिटिव चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं, या अभी आप लोग को थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव एंड हैप्पी लग रहा होगा, तो क्या जो छोटी छोटी चीजें पहले आपको बॉदर करती होंगी कि अरे कि मेड ने यहाँ पे ठीक से डस्टिंग नहीं की, पोछा उसने अच्छे से नहीं निचोड़ा, यू नो, या कपड़े अभी भी तक 1.5 दिन से मे बी धूप में सूख रहे हैं, या व्हाटएवर, लाइक नो, पहले जो मे बी आपको कुछ कुछ बॉदर करता होगा, हैव यू नोटिस्ड दैट इट हैज रिड्यूस्ड मे बी अ लिटिल बिट? maybe you are a little, you know, you're thinking about you know, voicing such thoughts. ऐसा आप नोटिस कर रहे हो कोई भी? Reduced a lot, not a little bit, a lot. Okay, wonderful. Yes. तो ऐसा कि आप तो हो अभी 1-2 सेशन से प्रैक्टिस में, और जो न्यू जन आए, आई वांट टू अंडरस्टैंड आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? एंड केतकी, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर कंटिन्यूइंग विद दैट. ओके, कितने बार ना लोग भूल जाते हैं, जब प्रैक्टिस आती है तभी याद आती है, बाकी दिन सब भूल जाते हैं. ठीक है, तो आप देखो कि आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके मन में याद और एक कंप्लेंट की तो 10 ग्रेटिट्यूड करने पड़ेंगे. हो सकता है आपका यही सोच आपको स्टॉप कर रहा है कुछ कंप्लेंट करने के बारे में, या मे बी ये कि अरे मैंने ये कंप्लेंट की तो व्हाट आई गिव इज व्हाट आई विल रिसीव, मेरे लिए भी कोई ऐसी कंप्लेंट करेगा. तो जो भी रीजन हो, इट डजंट मैटर. यूनिवर्स सिर्फ ये देख रहा है कि आपने कंप्लेंट की है कि नहीं की है. ठीक है, हमको जो बोला जाता है फेक इट टिल यू मेक इट, वो यही है. पहले तो आप अपने आप को फोर्स करते हो कोई हैबिट में डालने के लिए ना, जैसे अपन ब्रश भी करते हैं, बच्चों को रोज याद दिलाना पड़ता है ना, उनका मन नहीं होता है, बट फिर भी उनको याद दिलाना पड़ता है ना, ब्रश योर टीथ, से सॉरी, से प्लीज, से थैंक यू. उनको जबरदस्ती सिखाना पड़ता है जब तक उनकी वो हैबिट नहीं बन जाए, या कि उसके बिना उनको अच्छा नहीं लगे. तो वैसे ही हमको भी हमारे को फोर्स करना है दैट वी ओनली फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स. या एंड जब आप, एंड माइंड इज वेरी क्यूट, वो जब हम वो बिजी रहेगा ना, जैसे माय मॉम एट व्हेन आई फर्स्ट डिड द प्रैक्टिस, आई सेड मम्मा पूरा दिन मन में थैंक यू करना है. मम्मा बोली तो ये तो तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा है, तुम पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो. जैसे ना शेख चिली को कुछ दे दिया गया है, वो पूरा टाइम वो ही कर रहा है. मैं बोली अच्छा, ये तो मेरे को नहीं पता था शेख चिली क्या करता है, आई डिड नॉट नो. मैं बोली नहीं, ये शेख चिली का है कि उसको कुछ दे दो. तो पूरा टाइम अगर आपके मन में थैंक यू चल रहा है, तो आप कुछ और बोलोगे ही नहीं. आप जिधर देख रहे हो आप सब चीज को थैंक यू बोल रहे हो मन में. या तो यू आर ओनली लुकिंग एट थिंग्स. अच्छा ये सोफा नहीं होता तो हम जमीन पे बैठते. अच्छा ये जमीन, ये मार्बल नहीं होता तो क्या बोलते मेरे को, तो या तो मट्टी होती. ओ ये फ्लोर नहीं होता तो मे बी हम ग्राउंड फ्लोर पे होते. क्या अच्छा ये बिल्डिंग, ये तो इतना अच्छा, मतलब इट्स लाइक ये पूरा चेन होता है. व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग, व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स, आप हर चीज के बारे में थैंक यू करना स्टार्ट कर देते हो कि अरे ये इतनी चीज अच्छी चीजें, इनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं. ऑल ऑफ दीज वर यू नो टेकन फॉर ग्रांटेड. ऐसे ही सोचना हम लोग को. सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, यू नो, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, फर्स्ट इज लाइक आपको तो थैंक यू बोलना है कि यस यू गॉट अप, इट्स अ न्यू डे, इट्स अ न्यू स्टार्ट. आप यही सोचो कि कल का दिन फिनिश, आज का दिन न्यू है, इस दिन हम क्या बेस्ट पॉजिटिव चीजें कर सकते हैं. ठीक है, ये सोच के हमको स्टार्ट करना है. शी इज टेलिंग अस दैट इट इज इनकंसीवेबल टू एनी ऑफ अस दैट हम लोग कभी हम लोग डाउट भी करते हैं कि कल हम उठेंगे कि नहीं. पूरे दिन की प्लानिंग, पूरे हफ्तों की प्लानिंग हम लोग करके रखते हैं. अगले बर्थडे में क्या करेंगे वो भी सोच लेते हैं. न्यू ईयर पे कहाँ जाएंगे, इतना वेट हमको अपना ड्रीम वेट करना है, सब प्लानिंग कर लेते हैं. या सो टुमारो व्हेन वी गेट अप, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स व्हेन वी गेट अप, वी हैव टू बी थैंकफुल. वी हैव टू से थैंक यू दैट आई एम अलाइव. या एंड बिफोर यू मूव, तो पहले तो इसके लिए थैंक यू करना है. देन एंड शी इज टेलिंग अस नो मैटर हाउ स्लीपी यू आर, हमारे अलार्म ने हमको जब भी उठाया हो, लेट, जल्दी, टाइम पे, जो भी, हमको पूरा टाइम थैंक यू बोलना है. ठीक है, दैट दिस डे इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड एंड आई एम गोइंग टू हैव द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ. ठीक है, सो वी हैव टू स्टार्ट लाइक दैट एंड लेट्स सी हाउ वी कंटिन्यू. या Say thank you for the good night's sleep you received. Are you fortunate enough to have slept in a bed with sheet and a pillow? Thank you. As your feet hit the ground, say thank you. You do have a bathroom? Thank you. Are you able to turn on the taps and immediately receive fresh, clean water every morning? Thank you. Imagine all the people who dug the trenches and laid the pipes across your country, throughout your city, and along all the streets to your home, so you can turn a tap and receive beautiful, clean, hot water. Thank you. As you reach for your toothbrush and toothpaste, thank you. Without them, your day would not begin so pleasantly. Thank you for the towels, the soap, the mirror, and everything in the bathroom. You see, that makes you feel fresh, awake, and ready for the day. या तो कल से जब आप उठोगे तो आपको अपने पिलो, अब सबसे पहले तो हम, यू नो, व्हेन आई डिड दिस आई सेड हाँ फैन कितना इंपॉर्टेंट है, फैन. या आई एम सो थैंकफुल फॉर द फैन आल्सो.
AC, I'm like, आप जो आपको दिख रहा है आपको उसके लिए, and I was like, my specs, I wear specs, I was like, thank you for my specs, thank you for the phone, thank you for so many messages when I get up in the, sometimes you guys have sent me such cute, such nice messages कि उसको पढ़ के लगता है कि आज का दिन तो सुपर मैजिकल होने वाला है, ठीक है, ऐसा लगता है, sometimes when I read the messages, तो आप देखो कि मे बी आपको लाइट नहीं पसंद है एंड विंडो पे जो कर्टन्स हैं, आप बोले अच्छा हुआ कर्टन्स ऐसे थे, some people are like that ना, जिनको थोड़ी सी लाइट में भी नींद नहीं आती है, तो दे फील एंड दे आर रेस्टलेस, तो जब आप उठते हो देखते हो अभी भी रूम कोजी है, नाइस है, तो जो चीज आपको लग रही है, आपको हर चीज के लिए थैंक यू होना, जिनको हम लोग एकदम लगते हैं कि उनको कभी ध्यान ही नहीं देते, लाइक बेड है, कभी आप जब आप ट्रेन में कभी सोओगे तो आपने अपना बेड मिस किया है, या आप कहीं हॉलिडे पे गए हो फिर लौट के आते हो तो लगता नहीं अच्छी नींद तो अपने बेड पे ही आती है, ऐसा लगा फीलिंग कि इतने थिक मैट्रेसेस होते हैं होटल्स में, बट फिर भी व्हेन यू कम बैक टू योर हाउस दैट इज द बेस्ट स्लीप दैट यू हैव, ऐसा लगता है आपको, वरना रोज नहीं लग रहा होता है कि ये मैट्रेस, ये बेड, ये पिलो कितना अच्छा है, होटल का वो अच्छा लगता है, बट 2 दिन बाद ही लगता है कि नहीं बैक में ना कुछ हो रहा है, इतने सॉफ्ट बेड पे नहीं सोना है, वो जंपिंग के लिए ठीक है, बच्चों के लिए, तो ये सारी चीजों के लिए जब हम लोगों को कोई एक दिन याद आती है, रोंडा बहन हमसे कह रही है कि हमको हर दिन उनके लिए थैंकफुल होना है, या कभी आप कब हमको गीजर की याद आती है, जब हमारे पहले जन जो गया है उसने पानी खत्म कर दिया, तब हमको याद है वो पानी खत्म, अब तो और लेट, ऐसा लगता है, तो शी इज टेलिंग अस टू बी थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग, ये तो मेरा फेवरेट एग्जांपल है, लाइक बॉडी जेट नहीं, वो जेट द शावर ना, वो जब आप कभी हॉलिडे पे गए हो और वो वहां नहीं हो, ऐसा लगता है, तब कितनी याद आती है ना इंडिया की, नहीं आती है, आप कहीं गए हो और वहां पे, लेकिन सम होटल्स इन इंडिया आल्सो दे डोंट पुट अ जेट इन द टॉयलेट, व्हाट इज दिस, तब लगता है अरे हाउ डू यू गो टू द टॉयलेट, टेल मी, तो ये सारे जो जोक्स भी बनते हैं वो इसीलिए बनते हैं, और वो सिर्फ जोक्स में नहीं रह जाने हैं, अब हमको हमारे लाइफ में डेली उनके लिए थैंक यू करना है, ठीक है, वो जो पॉट है अब, एंड शी इज गिविंग अस रीजंस कि जो आपके टैप में जो पानी आ रहा है किसने कितनी मेहनत की, वरना आप देखिए वो जो टॉयलेट मूवी थी भी यही है ना कि देयर सो मेनी पीपल इन द कंट्री हु डू नॉट हैव अ टॉयलेट, और हम लोग हमारे टॉयलेट को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अब सबका अपना एक पर्सनल टॉयलेट है, छोटे में आप अपने सिबलिंग्स के संग शेयर करते थे तब कोई इशू नहीं होती थी, अब वो सब इश्यूज बनने लगी है कि नहीं ये मेरा टॉयलेट है, ये कैसे चला गया, वो कैसे कितना मैसी छोड़ दिया उसने, अब हम लोग को ये सारे इश्यूज मेरे कोई आ गए, लाइक दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, पहले नहीं लगता था, पहले हम लोग 3 sisters एंड अ ब्रदर एंड वी हैड वन बिग रूम एंड वन टॉयलेट एंड वी यूज्ड टू शेयर, अब लगता है अरे अब अब सब जन अपने अपने घर चले गए, आई एम हियर, सो व्हेन दे कम ओवर माय सिस्टर्स आई वाज से उफ कैसा कर दिया, दिस इज माय, ऑफ कोर्स थोड़ा सा कुछ होता है ना, लाइक रश सबको जाना है, तैयार होके एक ही संग शॉपिंग जाना है या मूवी जाना है या डिनर पे जाना है, तो एवरीवन इज यूजिंग इट, तो सभी को रश है उस समय, तो ये सारे पानी खत्म हो गया कि ये हो गया, टॉवल्स यहाँ पे रखी वो वहां रख दिया, तो अब हम लोग कैसे क्या बोलते हैं थोड़े से डिफरेंट हो गए, पहले बहुत अच्छे से खुशी खुशी सब लोग एडजस्ट करके रह लेते थे, अब इतनी सारी चीजें हैं और उतने ही ज्यादा हम लोग अनग्रेटफुल एंड कंप्लेनिंग टाइप के हो गए, तो रोंडा बहन हमको यही बता रही है कि बी थैंकफुल दैट वी आर सो ब्लेस्ड दैट वी हैव ऑल दैट, पहले घर में एक टीवी होता था, आजकल हर रूम में एक टीवी है, या इज माय नेटवर्क क्रिएटिंग सम इशू, कैन यू हियर मी? Yes. But it's cracking in between. It's scratching मेरे को तो ठीक लग रहा है। अच्छा okay thank you network, thank you Airtel, okay yeah, so Tanvi you also do the same for your network, हाँ, तो हम ये बोल रहे कि पहले हम लोग कितने ज्यादा अच्छे थे, मिलजुल के रहते थे, अब सब चीजें ज्यादा हो गई हैं, पहले शायद एक कार भी नहीं होती होगी कोई घर में, आज 2 कार है, 3 कार है, फिर भी हम लोग कंप्लेन करते रहते कि मेरे टाइम पे कार नहीं मिली, हाँ वो ड्राइवर वहां चला गया, तो रोंडा बहन हमको यही याद दिला रही है कि जो है यू आर सुपर ब्लेस्ड, देयर आर सो मेनी इन द कंट्री, देयर आर सो मेनी इन द वर्ल्ड जो उनके पास ये चीजें नहीं है, एंड बुक इज टेलिंग अस जिसके लिए अब हम ग्रेटफुल नहीं है वो हमसे छीन लिया जाएगा, या सो टुडे इज अनदर beautiful chapter that will teach us to value each and everything, कि आज जो आप ये चेयर पे बैठे हुए हो ये नहीं होती तो आप कैसे बैठते, या जो आप बेड पे बैठे हुए वो नहीं होता तो कैसे बैठते, आपको जमीन में बैठना पड़ता, आपके नीज में क्या होता, just think of those things and be grateful for each and everything, whether you are going to the toilet, उसमें लॉक है, उसमें हैंडल है, उसमें टॉवल टांगने का हुक है, how many you have missed a hook in the toilet, कि कोई आप टॉयलेट हुए कभी ना कोई जगह में हुक नहीं होता, स्पेशली in malls and all, where do you hang your purse, or your chunni when you go to the toilet? I don't know guys का क्या रहता है hook का system, but females need a hook in the toilet, right?
तो वो जो छोटी छोटी चीजें होती हैं हम लोग उसको तब याद करते हैं जब वो नहीं होती है। अब हमको वो हर चीज के लिए थैंकफुल होना है जो हमको दिख रही है, ठीक है। आपको जो रीजन सोचना है, अगर रीजन नहीं भी आ रहा है, जस्ट से थैंक यू, बिकॉज एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। या दिस इज व्हाई इट विल keep being in your life like that. Yeah. So let's read. What do we have to do after we come out of the toilet? As you get dressed, think about how fortunate you are to have clothes to choose from and wear. Thank you. Think about how many people must have been involved in making all the various items of clothing you put on and wear it one day. It's likely that the clothes you put on in one day come from many countries across the planet. Thank you to everybody. Do you have shoes? Lucky you. Imagine life without them. Thank you for shoes. तो अगर आप बोलो नहीं मैं तो सुबह सुबह उठ के नहाती नहीं हूँ, पहले तो ये सब क्या करें, तो आपकी जो भी रूटीन है, ठीक है, आप सुबह उठ के आप जो कर रहे हो, आप टॉयलेट से निकले, टॉयलेट तो जाएंगे ही, टॉयलेट से निकले, आप किचन में गए, आपने ब्लेसिंग्स लिखी, सॉरी किचन में नहीं, आपने ब्लेसिंग्स लिखी, डायरी के लिए थैंक यू, पेन के लिए थैंक यू, आप जो देखते जा रहे हो आपको मन मन में आपको पूरा टाइम थैंक यू बोलना है, ओके। आपने देखा, जिसको यूज किया, हर चीज के लिए थैंक यू। आप किचन में गए, डोर, विंडो, काउंटर, बर्नर, एवरीथिंग दैट यू आर यूजिंग, उसके लिए थैंक यू। आप नहीं भी यूज कर रहे हो, आपको दिख रहा है, आपको हर चीज के लिए थैंक यू करना है। फिर आपने किचन में जो भी अपने काम किए एंड आप उसके बाद अपना शावर लेने गए, शावर लेने के बाद आपने जो ड्रेसेस निकाली अपनी, उसके लिए भी आई एम टेलिंग यू बिफोर दिस सेशन आई यूज्ड टू स्पेंड क्वाइट लग्जरियस टाइम इन सिलेक्टिंग माय टॉप। व्हेन आई एम सेइंग लग्जरियस मींस लाइक वो प्रेशियस टाइम होता है ना सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए, आई कुड नेवर डिसाइड कि मेरे को क्या पहनना है। आई वुड थ्रो 2-3 क्लोथ्स पहन के इधर उधर, कि नहीं ये नहीं ठीक लग रहा है, माय क्लोथ्स ओनली, हमेशा पहने रहते हैं, बट नहीं इसमें मोटे लग रहे हैं, आज इसमें मोटे लग रहे हैं, हाउ वी डू, पहले ऐसे करते थे। बट व्हेन आई वाज डूइंग दिस सेशन, श्वेता आई थिंक शी इज हियर टुडे, शी सेड तुम रात में निकाल लो। आई सेड ओके ठीक है। एंड देन रात में तो थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा था निकाल के आए, यस थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा था रोज रोज, बट आई वुड फ्रॉम दैट सेशन ऑनवर्ड्स आई डिसाइडेड नहीं मेरे क्लोथ्स एक बार में सही निकलेंगे, आई एम गोइंग टू लुक माई बेस्ट। और हम ऐसा सोच के धीरे धीरे नाउ आई डोंट हैव टू चेंज, एक बार जो निकालते हैं अब हम वही पहन लेते हैं एंड आई एम सेविंग एटलीस्ट 15-20 minutes in the morning. So I'm so happy. Thank you Shweta because your suggestion put these thoughts in my mind. And आप देखो अगर आपको जिस इशू में, जिस जगह में भी ऐसा कुछ भी चैलेंजिंग लगता है, just use the gratitude practice and you will see wonders. एक्चुअल में ऐसा होता है। एंड वो आपको रीजंस दे रही है कि अगर आपको जनरली थैंक यू नहीं आ रही है क्लोथ्स के बारे में, तो जस्ट थिंक अबाउट द लॉट ऑफ एफर्ट टेकन बाय सो मेनी पीपल कि आपके वो कपड़े बने, एंड दे आर एक्चुअली फ्रॉम ऑल अक्रॉस द प्लैनेट। ठीक है, काफी ज्यादा चाइना से भी आ रहे हैं अभी, हाँ, बट इंडिया के भी बहुत सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें हैं, कहाँ कहाँ से आपके वार्डरोब में, आप नहीं ट्रैवल किए हो बट आपके पास चीजें ऑल ओवर द वर्ल्ड की हैं। सो बी थैंकफुल फॉर देम। आप शूज के लिए थैंक यू कर रहे हो, तो शी इज टेलिंग अस ना, वो वाला जो हम लोगों ने एक स्टोरी पढ़ी थी ना कि वो किंग था, वो कुछ सोच रहा था कि मेरे पास तो क्या पहने पता नहीं, बट देन ही sees the shirtless guy, right? वो एक स्टोरी है ना बच्चों की। so it is actually like that and about the shoes also। तो इतने सारे जो स्टोरीज हैं ये अब ये चैप्टर पढ़ के सब समझ में आते हैं, पहले तो ऐसी स्टोरी के जैसे पढ़ लेते थे, तो ये सब इस चैप्टर में पढ़ के समझ में आ रहा है। तो आप बेसिक फंडा यही है, मैंने बहुत बोल दिया कि आपको जो रीजन लेना है, just take that reason and be grateful for whatever you have, okay? And you have to continue doing this in the whole, in whole of the morning. Yeah, easy. I have always been delighted at the prospect of a new day, a fresh day, one more start, with perhaps a bit of magic waiting somewhere behind the morning. J.B. Priestley, 1894 to 1984, writer and playwright. Yeah, so J.B. Priestley is telling us that behind every morning, there is a bit of magic waiting. So behind the morning, माने morning बहुत important है, ठीक है। ही इज नॉट टेलिंग अस कि मॉर्निंग ही आपके मैजिक होने शुरू हो जाएंगे, नहीं, वो आपसे कह रहे हैं कि इफ वी fill in the morning with gratitude, if we are starting our day with gratitude and positivity, then after the morning, what is after the morning? Your whole day. After each morning is your whole life. If we start our mornings with positivity and gratitude, our whole life, our whole day is going to be full of magics. Yes. Make today as good as it can be.
practicing concentrated gratitude and putting the magic into your morning routine. From the moment you open your eyes until you have put your shoes on or finishing getting ready, say the magic words thank you in your mind for everything you touch and use. It doesn't matter if you don't shower or get dressed first thing in the morning. You can still use the magic morning practice as a guide and apply it to whatever your morning routine is. If you wake up and eat breakfast first, then you touch and use thing for your breakfast, say magic words thank you. Give thanks for your morning coffee, tea, fruit juice, or breakfast. They make your morning so enjoyable and give you energy for the day. Be grateful for the kitchen appliances you use for your breakfast. The refrigerator, hot plates, oven, toaster, coffee maker, or kettle. या तो कल हमको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड हमको कह रही है रॉन्डा बर्न। ये कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड मतलब आप सुबह से माने जब तक आप रेडी होके घर से नहीं निकल जा रहे हो या जब तक आपने ब्रेकफास्ट नहीं कर लिया, शी इज टेलिंग अस ब्रेकफास्ट, शी इज एक्सपेक्टिंग कि हम लोग सब ब्रेकफास्ट करके काम पे चले जाएंगे या हमारा दिन जो शुरू हो रहा है आफ्टर ब्रेकफास्ट। नॉर्मली टिल ब्रेकफास्ट इज योर टाइम, मी टाइम, बट उनको आई थिंक पता नहीं है कि इंडियन हाउसवाइफ के बारे में या हम लोग को घर में क्या क्या करना पड़ता है। बट व्हाट शी इज सेइंग इज दैट इफ वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड, माने हमने जो भी छुआ या यूज किया उस सब के लिए हमको ग्रैटिट्यूड करना है, उस सब के लिए हमको मन में थैंक यू बोलना है। तो आप बहुत सारा थैंक यू बोल रहे हो मॉर्निंग में, राइट? सो दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड, कि आपका मन सिर्फ थैंक यू पे ध्यान लगा रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। कि आपने मंकी को बोल दिया है अपनी सांसें गिनो, राइट? तो इफ यू आर काउंटिंग योर ब्रेथ्स, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड, हम वो शेयर करेंगे कल, एक बुद्धिस्ट कोट है वो भी, कि आवर माइंड इज लाइक अ मंकी, उसको जब तक कुछ दोगे नहीं वो इधर उधर करता रहेगा। तो इफ यू आर काउंटिंग योर ब्रेथ्स, यू आर फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ। अदरवाइज क्या होता है, आप बोलते नहीं मेडिटेशन नहीं कर पाते, ध्यान इधर उधर चला जाता है, राइट? या हम लोग ने जो शुरू में जब अपन मेडिटेशन ट्राई करते हैं तो ऐसा ही फील करते हैं। तो अगर हम लोग सुबह से सिर्फ थैंक यू पे फोकस करें कि आपका काम ही यही है कि ब्रेकफास्ट तक आपको सिर्फ थैंक यू बोलना है, तो आप दूसरी चीजों पे कम ध्यान दोगे। ठीक है, कि बच्चे ने कुछ शोर ज्यादा कर दिया या गाना थोड़ा सा लाउड चल रहा है या किचन में कुछ थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है या हस्बैंड ने कुछ अपना सामान ठीक नहीं रखा, बच्चों का कुछ सामान इधर इधर पड़ा हुआ है, आपका ध्यान उस पर कम जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका मन तो थैंक यू में लगा हुआ है। अनलेस कुछ उन्होंने बहुत ही बदमाशी कर दी है तो अलग बात है। टुमारो ओनली फोकस ऑन saying and thinking thank you about whatever you are touching and whatever you are using। ठीक है, तो उन्होंने पूरा एग्जाम्पल दे दिया है क्या करना है। एंड ये जो सुबह में आप इतना सारा ग्रैटिट्यूड करोगे, इट्स लाइक कॉन्सेंट्रेटेड। आप देखिए ना, साबुन की एक बूंद से वो दाग जाता है कि आप उस पे उसका स्ट्रॉन्ग लिक्विड डालते हो, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन उसका बनाते हो, किससे जाता है? ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग से जाता है, सिली क्वेश्चन, बट ऐसे ही जाता है, उसी से जाता है। तो यही हमारा जो लाइफ में हमको मैजिक चाहिए, जितना ज्यादा हम लोग ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना ज्यादा उसका असर होगा। या सो प्लीज रीड। Every day without exception I say thank as I put one foot on the floor and you as my other foot touches the floor, so that as both feet touch the floor for the first time each day, I have said thank you. As I walk towards my bathroom, I say the magic words thank you in my mind with each step. Then I continue saying thank you in my mind as I touch and use each thing in my bathroom. By the time I am dressed and ready for the day, I feel so happy I could jump for joy. And when I feel that happy, I know my gratitude has worked and I am guaranteed to have a magical day. As I go through my day, I really feel as though I have a magic power with me, because one good thing after another happens. As each good thing happens, I am ever more grateful, which speeds up the magic with even more good things happening. Even more good things happening. You know, those days when everything just seemed to be right for you. Well, that's what it's like after doing magic morning, but multiplied. या सो रॉन्डा बर्न कह रही हैं वही कि जब वो सुबह उठ के अपना एक पैर रखती हैं तो थैंक बोलती हैं, दूसरा पैर रखती हैं तो थैंक यू बोलती हैं। तो अगर आप भी ये करने लगो, आप देखो ना, उसके बाद जब वो उठ रही हैं तो उठते ही उन्होंने बोला थैंक यू दैट आई एम अलाइव,
बेड, पिलोज, ब्लैंकेट, एसी, यू नो, फैन, विंडो, कर्टन, जिसके लिए आपने देखा कि हाँ लाइक सदगुरु सेड ना, आप उठे, आपने देखा आपके बगल वाला भी जिंदा है, राइट? दिस इज हाउ ही सेज, उन्होंने ऐसे ही बोला था ना, दैट यू आर अलाइव, ओ वाओ, आई एम सो हैप्पी। हाँ, आपने देखा आजू बाजू के लोग भी हैं, या सो हैप्पी। तो हर चीज के लिए आपको थैंकफुल होना है, ठीक है? एंड कल से जब आप उठ के जमीन पे अपना पहला पैर रखते हो, जो नहीं करते हैं आप सोचो, यू आर थैंकिंग मदर नेचर, यू आर थैंकिंग मदर अर्थ, ठीक है? एंड देन यू आर पुटिंग योर फर्स्ट फुट ऑन द फ्लोर। एंड वो सबको ध्यान है ना, यू हैव टू चेक योर स्वर, जो स्वर चल रहा है, यू हैव टू लुक एट दैट हैंड, टच योरसेल्फ एंड पुट दैट फुट ओनली ऑन द ग्राउंड, ठीक है? फिर आप थैंक यू बोल के स्लीपर के लिए, बाथरूम के लिए, डोर के लिए, बाथरूम में जाके जो भी आपको करना है, हर चीज के लिए, वाटर जेट, कमोड, टैप, मिरर, टूथब्रश, टूथपेस्ट, एवरीथिंग यू हैव टू सी एंड जज। दिस इज ऑल्सो सो इम्पोर्टेंट, इसको कल नहीं किया था थैंक यू, इसको तो आज तक थैंक यू नहीं किया है, आपको ऐसे करना है, ठीक है? एंड शी इज टेलिंग अस, वो जब तक घर से निकलने को होती हैं तब तक वो इतनी खुश हो जाती हैं थैंक यू करते करते, दैट शी कुड जंप फॉर जॉय, माने शी इज सो हैप्पी। एंड व्हेन शी इज फीलिंग लाइक दिस, शी इज, व्हाट इज शी डूइंग? शी इज अट्रैक्टिंग मोर गुड थिंग्स इन हर लाइफ। ये हम लोगों ने पावर बुक में भी पढ़ा था कि आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव हो जाएगी कि आपके लाइफ में पॉजिटिव चीजें ही आएंगी, या? एंड ये तो यूनिवर्सल ही है। एंड शी इज टेलिंग अस, पूरा दिन उनका वैसे ही होता है, अच्छी चीजें होती हैं, शी इज मोर ग्रेटफुल, तो और अच्छी चीजें होती हैं, बिकॉज व्हाट यू गिव इज व्हाट यू आर रिसीविंग। तो ये स्ट्रीक, अगर आप इसको स्ट्रीक बोलो, ये तब तक चलती रहेगी जब तक आप अनग्रेटफुल या कंप्लेनिंग नहीं हो जाओगे, ये तब तक चलती रहेगी। So each day we have to start on this positivity and it is amazing. आप लोग जब फर्स्ट टाइम करोगे कल, so you have to share and I'm telling you, ये तो on and off बहुत ज्यादा हम लोग करते रहते हैं। I guess many of us do this, yeah? तो ये एक्चुअल में बहुत, you know, आपका you're so positive, like पहले होता था ना, घर से निकलते निकलते अरे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आज ये है, आज अब वो नहीं थॉट्स आते, अब लगता है कि एकदम फ्रेश। इट्स लाइक जब आप घर से निकले हो, यू आर ऑलरेडी, यू नो, फुल ऑफ एनर्जी, ऐसी फीलिंग्स अब आती हैं, या? सो लेट्स रीड what the practice is. Yeah, and she's saying is कि if you are doing this, तो कभी कभी जो दिन भूले भटके कोई एक दिन अच्छा होता होगा, अब ये मैजिक मॉर्निंग के बाद हर दिन अच्छा होएगा, बट और भी ज्यादा अच्छा होगा। It will be, the magics will be even more, you know, more in number. Yeah. Magic practice number 11, a magic morning. Number 1, when you wake up to the new day, before you do a single thing, say the magic words, thank you. Number 2, from the moment you open your eyes until you have finished getting ready, say the magic words, thank you, in your mind for everything you touch and use. Number 3, count your blessings. Make a list of 10 blessings, write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel the grateful for the blessings as you can. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Yeah, so thank you नीलम जी for reading for all of us. आप देखिए प्रैक्टिस में भी रोंडा बन ने यही लिखा है, काउंट योर ब्लेसिंग्स बाद में लिखा है। उन्होंने बोला कि आंख खोलते ही आपको थैंक यू बोलना स्टार्ट हो जाना है, ठीक है? सो आपने लाइट ऑन की, फैन ऑन किया, ऑफ किया, रिमोट के लिए, एसी के लिए, माने जो जो चीज के लिए, पहले तो आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हो, थैंक यू दैट आई हैड सच अ वंडरफुल स्लीप। हाँ, हर चीज के लिए आप नाइटी सोचो, कंफर्टेबल, लाइक एनीथिंग, माने ये आपके माइंड की वो है कि आप कितनी चीजों के बारे में ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। एंड रोंडा बर्न ने ये भी कहा है कि जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, आप रैंडम चीजों के लिए कर रहे हो, आप जो चीजें यूज कर रहे हो उनके लिए कर रहे हो, एंड यू विल बी अमेज्ड कि आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे होने लगेंगे, आपके फाइनेंशियल इश्यूज भी अच्छे होने लगेंगे, हेल्थ भी इंप्रूव होएगी। क्यों? क्योंकि आप हैप्पी फील कर रहे हो, आप ग्रेटफुल फील कर रहे हो, तो अच्छी चीजें ही आएंगी। जो भी एरिया है वो सब में ऑटोमेटिक चीजें धीरे धीरे अच्छी होने लगेंगी, ठीक है? आप जनरल ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, फिर भी आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आने लगेगी। ओके, सो डोंट यू थिंक दैट इज इवन मोर अमेजिंग? हाँ, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा ना, आप नेचर को अप्रिशिएट करो, आप वेदर को अप्रिशिएट करो, आपको सड़क पे कोई अच्छी चीजें दिख रही है उसको अप्रिशिएट करो, माने हर टाइम आप अप्रिशिएटिव और ग्रैटिट्यूड वाले जोन में ही रहना हमको। ओके, एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव लर्न द पॉजिटिव फीलिंग वाला चार्ट? यस, किसी ने नहीं किया? देखा किसी ने? हमने शेयर किया था, देखा वो चार्ट में है क्या, ऊपर नीचे सब इधर उधर? यस, कविता जी आई नो आपको लर्न है। यस, कल से हम क्वेश्चन करेंगे, नीलम जी, कुसुम जी, और भी बहुत सारे नियोजन है ना, रिया, तृप्ति, सुप्रिया, ऑल ऑफ देम
सब हम अब लिस्ट ऐसे नाम देके आई विल से हाँ आंसर टॉप इमोशन, इधर वाला इमोशन आई विल आस्क लाइक दिस नाउ, ओके? सो प्लीज पढ़ लो, इट इज फॉर यू, ओके? या सो लेट्स डू द ग्रैटिट्यूड एंड आई विल हैव टू राइट डाउन द ग्रैटिट्यूड, ठीक है? तो हम पक्का से आपको भेज देंगे। या सो लेट्स join our hands, close our eyes and pay our gratitude to the universe. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the Supreme Power. Thank you for your kindness and abundance. Thank you to the wonderful 5 elements of nature who have given us everything with their whole. Thank you for the good health of my loved ones and my family. Thank you for the love in my life. Thank you, thank you, thank you. Okay, so one more thing I wanted to tell you कि आपने अपनी जो ड्रीम्स लिखी हैं, ठीक है, ड्रीम्स लिख लिया ना सबने, आज डे 11 है, हम लोग परसों हमारा ड्रीम का चैप्टर है, ठीक है? तो आपने जो ड्रीम्स लिखी हैं उसमें वांट नहीं होना है, ठीक है? आई वांट टू बी रिच, आई वांट टू बी 50 kg, नहीं, आई वांट माय I am. यस, I am. आई वांट टू बी डिजीज फ्री, आई वांट टू गेट रिड ऑफ माय बैक पेन, ठीक है? ये नहीं लिखना है, हाँ? आप जो चाहते हो वो लिखना है, हाँ? आई एम रिक्वेस्टिंग, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको यहाँ पे नहीं बोलना है तो एटलीस्ट एक ड्रीम आप हमको लिख के भेज दो, ठीक है? सो दैट आई कैन सी, अदरवाइज ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आपको यहीं पे शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कुछ लिखा है तो दूसरे वाले लोग भी समझ जाएंगे। आप नो यू हैव टू सी कि आप उसको करो वर्क उस पर, बिकॉज दिस इज योर ड्रीम। आपको अगर आपको कोई रिलेशनशिप इंप्रूव करना है मदर इन लॉ से, डॉटर इन लॉ से, हस्बैंड से, बॉस से, तो आपको जैसा रिलेशनशिप चाहिए वो लिखना होगा। आई वॉन्ट माई बॉस इज अप्रिशिएटिंग मी एट वर्क, अप्रिशिएटिंग माई वर्क, नॉट अप्रिशिएटिंग मी, माई बॉस इज अप्रिशिएटिंग माई वर्क, माई मदर इन लॉ इज जस्ट लविंग मी एंड अप्रिशिएटिंग मी, शी इज सेइंग आई एम अ ब्लेसिंग टू द फैमिली, आप ये लिखो। माई डॉटर इन लॉ इज जस्ट taking care of me like my daughter and even more than my daughter, आपको ऐसे लिखना है इन द प्रेजेंट टेंस। ये नहीं लिखना है कि अरे वो तो मेरी बात ही नहीं सुनती, हम चाहते हो मेरी बात सुनने लगे, ऐसे नहीं लिखना है। हाँ, मेरे बच्चे तो बड़े नालायक हैं, खाली गेम खेलते रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, ऐसे नहीं लिखना है। हाँ, यू हैव टू राइट व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग देम टू डू, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग देम टू बी, आपको ऐसे लिखना है। आई एम सो हैप्पी दैट माय किड्स आर getting brilliant marks in exam, they are playing games also and they are getting excellent marks, they are so nice, they do puja with me, जो भी आप चाहते हो, जो आप चाहते हो वो लिखना है। आप रेस्टोरेंट जाके क्या ऑर्डर देते हो, आप ये बोलते हो कि नहीं मुझे नॉनवेज नहीं खाना, मैं सब कुछ खा सकती हूँ लेकिन नॉनवेज नहीं खा सकती हूँ, वो बोलेगा लेकिन खाओगे क्या, ये तो ऑर्डर बताओ, है ना? आप उसके ऊपर तो नहीं छोड़ देते हो ना, आपको लिखना है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है? व्हाट डू यू रियली वांट। हाँ, जिसको भी डाउट है आप फिर से वाला चैप्टर पढ़ लीजिए, जो ड्रीम्स वाला चैप्टर है डे 0 में जो हम लोगों ने किया था, आपको वीडियो देखना है वीडियो देख लीजिए, लेकिन आपको जो चाहिए अगर क्वेश्चंस है उसमें तो प्लीज आस्क, प्लीज रॉन्ग ड्रीम्स मत लिखिएगा, ठीक है? जैसे आज प्रमोद जी ने बोला मेरे घर में कलह हो रही है, ऐसे नहीं लिखना है आपको। हाँ, आपको लिखना है कि मेरे घर में सब कुछ पीसफुल है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर स्पीकिंग। अगर आप जैसी भी अभी सिचुएशन है, डजंट मैटर, कोई भी सिचुएशन है, हाँ, उसके बारे में आपको जैसी है वो तो बोलनी ही नहीं है, जैसी आप चाहते हो वो बोलनी है, ठीक है? तो इज इट क्लियर? हाँ, आई वाज लाइक, और भी किसी के मन में डाउट है तो आप प्लीज शेयर करो, और जो भी सिचुएशन है पीपल हैव शेयर्ड ओवर हियर। तो कम करो 2 मिनट। प्रिया जी, जय जिनेंद्र। हाँ, बोलिए। मैंने एक ड्रीम ऐसा लिखा हुआ है, हाँ, 100 acres of land of us got sold out in 10 crore rupees। मेरा एक ड्रीम में हमारी एक प्रॉपर्टी है वो जो सेल नहीं हो रही है। हाँ, तो वो ऐसे लिखे हैं तो करेक्ट है? हाँ, आपको लेकिन लिखना है, आपको तो सारा प्रोसेस पता है कैसे लिखना है ना? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल दैट माय प्रॉपर्टी हैज बीन सोल्ड फॉर दिस मच एंड आई एम यूजिंग दिस मनी फॉर व्हाट। आपके जो पैसे आए हैं उससे क्या करना है ना, वो भी लिख दो ड्रीम में। हाँ, वो तो लिखा हुआ है। हाँ, कि मैंने उसे, मेरे को एक प्रोजेक्ट चालू करना था तो ऑलरेडी चालू हो गया। मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ के नाम से बेटियों को देना है, दान देना है, नीडी को देना है। तो ऐसा मैंने उसे पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, और आप उसमें जितना ज्यादा फीलिंग्स डालोगे, ओके, कि वो लोग इतने खुश हुए कि वो जब आपने किसी को हेल्प किया वो लोग इतने खुश हुए और ब्लेसिंग्स दिए, ठीक है? और अगर आपका ये इम्पोर्टेंट ड्रीम है, आपको उस पे
5 लाइक वी विल डिस्कस दिस लेटर, उसमें जो करना है ना विजुअलाइजेशन दिस दैट, वो हम लोग सब उसमें डिस्कस कर लेंगे, आपको उस पे फोकस करके करना है, ठीक है। और मैंने ये ना वो एक क्लास में करा था 369 3 टाइम मॉर्निंग में लिखना, फिर 6 टाइम और फिर 9 टाइम, तो उसमें मैं ऐसा लिख रही हूँ तो इट्स ओके। हाँ मैंने अभी जो पढ़ा वो फिर शॉर्ट में लिखना है ना उसमें, हाँ तो बिल्कुल शॉर्ट आई में एम राइटिंग लाइक दैट फॉर 45 डेज वी हैव टू राइट, आई थिंक। ओके ओके ठीक है, करेक्ट है ना, इसका जो वर्डिंग है वो बट करेक्ट आप है। मेरे को फिर भी लगता है आप उसमें स्टार्टिंग थैंक यू से ही करिए, ठीक है। थैंक यू से, इसमें भी थैंक यू से स्टार्ट करूँ? हाँ ओके, देखिए मेरा थैंक व्यू यू से ये मैं है, स्टार्ट करूँ? हाँ अभी ओके, आपने कर लिया तो कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं नहीं। कल से वैसा लिख लेती हूँ ना, नहीं अभी नहीं मेरे 11 डेज हुए हैं। नहीं नहीं तो अच्छा ठीक है, वो आपके माने लाइक 11 डेज फिर आपके वो हो जाएंगे, ठीक है ओके। तो अच्छा फ्रॉम टुमारो थैंक यू लिख के स्टार्ट कर देती हूँ। ओके या ठीक व्हाट है यू टेल? ठीक है, हाँ वो कर सकते हो। ओके लेट मी थिंक, फिर हम बता देते हैं आपको। हाँ ओके ओके, नो थैंक यू। Priya, I want to ask something. हाँ यस सविता जी यस। Yeah, actually, in my dream list, I have written that I want a flat. Yeah, but that project is going to complete within 2-3 years. Yeah, but मतलब when I wrote this dream, I did not know that वो project इतना late complete होगा. हाँ Okay, but at present, my son is getting engaged on 11th of July. And जिस flat में अभी, yeah, thank you. तो जिस फ्लैट में अभी हम लोग रह रहे हैं, तो इट्स अ जॉइंट फैमिली, तो आई डोंट हैव अ स्पेयर रूम फॉर हिम। तो पहले मेरे को अब आई हैव टू टेक जैसे भी अ रूम फॉर अ डॉटर इन लॉ। यस तो क्या करूँ? वो ड्रीम लिस्ट में तो जो प्रोजेक्ट लिखा हुआ वो तो 2-3 इयर्स लगेगा कंप्लीट होने में। हाँ तो नहीं, आपने जब वो ड्रीम में लिखा था, सॉरी टू इंटरप्ट बट आई वांट टू अंडरस्टैंड, जब आपने ड्रीम में लिखा था तब आपका वो फ्लैट बुक हो चुका था? नहीं अब नहीं हुआ था? नहीं अभी भी नहीं हुआ है। ओ ओके ओके, तो सुनिए ना, देखिए ड्रीम में क्या लिखते हैं, ठीक है, तो आप एक न्यू ड्रीम बना लीजिए, उसको आप लिखा रहने दीजिए, ठीक है, आप न्यू ड्रीम बना लीजिए और उसमें आपको जैसा घर चाहिए, आप प्रोजेक्ट का नाम मत दीजिए, ठीक है। आप जब लड़की देखने गए थे, अनलेस आपके बेटे की लव मैरिज हो, तो आपको पहले से तो इट्स अ लव मैरिज, मगर काफी हैसल टैसल के बाद सक्सेसफुल हुई। मतलब उस समय काफी उसमें करना पड़ा, ग्रैटिट्यूड बहुत दिन तक चला। ओके ओके वेरी गुड। अगर हम लोग जनरल बात करते हैं, अगर कोई लड़की देखने जाता है, जब माने लाइक जिसको भी लड़की या लड़का जाता है, उसको पहले से तो उसका नाम नहीं पता होता है ना। Yeah, definitely. तो जब हम लोग ड्रीम में लिखते हैं, you know that I want my son to be married happily and living with us, तो उसमें हम लोग लड़की का नाम तो नहीं लिखते हैं, right? Definitely. You know, we want a daughter-in-law or a, you know, happy family. I had written this my dream पर, तो फिर वो भी पूछना था मेरे को, तो मैंने लिखा था कि उसको जिस टाइप की वाइफ चाहिए, तब मेरे को नहीं मालूम था ये चीज के बारे में। तो वो चीज अब वो पूरी हो गई कि वो मिल गई है, तो उसको मैं क्या स्ट्राइक करूं, क्या करूं? हाँ बिल्कुल, आप उसको स्ट्राइक करिए और आप न्यू ड्रीम लिस्ट लिखिए। अच्छा सेकंड, आपको जो घर का लिखना है, नाउ यू राइट, यू नो दैट आपको जैसा घर चाहिए, आप उस घर को डिस्क्राइब करिए एंड उसको एनर्जी दीजिए, ठीक है, वो लिखिए। एंड यू नो यू बिल्कुल लिखिए दैट देयर सेपरेट रूम फॉर एवरीवन, ये तो एक्सपेक्टेड है। आप ये ऐसा लिखिए, 2 बेडरूम चाहिए, 5 बेडरूम चाहिए, आप ऐसा लिखिए, बालकनी चाहिए, फ्लैट चाहिए, घर चाहिए, राइट लाइक दैट, ठीक है। एंड देन on day 13 we'll discuss this a little more, but अभी आप उस ड्रीम को स्ट्राइक करिए या रहने भी दीजिए। जो डॉटर इन लॉ वाली है उसको तो स्ट्राइक ही कर दीजिए, है ना। एंड देन यू कैन राइट अ न्यू ड्रीम फॉर योर हाउस। And there is one more thing I forgot to acknowledge, that Tulsi is helping me a lot in making my vision board. Okay, yes, thank you, wonderful, I told you. Yes. Yeah, okay. Yeah, so thank you Tulsi ji. I think she's not here today. Oh, she's not here. Otherwise we would have seen her. Yeah. Okay. Okay, तो आप अपना ड्रीम लिखिए, ठीक है, and we'll discuss it day after। और जो आपको चाहिए वो लिखिएगा, ठीक है, कैसा कॉम्प्लेक्स चाहिए, स्विमिंग पूल चाहिए उसमें, कि जिम चाहिए, कि बैंक्वेट हॉल चाहिए, रूम। नहीं, ये तो मैंने पहले वाले में लिखा ही था, तो कि वो कॉम्प्लेक्स को देख के क्या ऑल ऑफ अ सडन ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी किस टाइप का मेरे को चाहिए। तो ऑल ऑफ अ सडन वन आफ्टरनून आफ्टर शॉर्ट नैप अचानक फोन हाथ में लिया, तो जैसे लगा कि वो वही प्रोजेक्ट सामने आया। तो आई आस्क्ड, तो तुलसी जी से ही बात हुई थी शायद,
उन्होंने कहा या ऑफ कोर्स, वो एक क्यों होता है, अपने को लगता है वो अपने लिए आता है. हाँ, तो You can देखिए ना, write that. बिल्कुल आप लिखिए. डेफिनेटली अगर आपने ऐसा क्यों आया, आपको लग रहा है, तो वो 2-3 years में प्रोजेक्ट बनेगा. बट मे बी यू शिफ्ट इन वन प्लेस एंड देन यू हैव अनदर प्रॉपर्टी ऑफ योर ओन, वो उस प्रोजेक्ट Yeah. में इट कैन बी लाइक दैट. या Okay. ओके, यस, थैंक यू. Thank you so much. Yes. So Kusum ji, you have a query about your dream? कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे थे उनको. Oh, okay. Thank you so much. Yes. Yeah, wonderful. So any other question about your dreams? अच्छा, अगर आपने day 3 की प्रैक्टिस की थी, वो फोटो वाली, हाँ, या की थी ना, सबने की थी. हाँ, तो अगर आपको लगता है कि कोई घर में चैलेंजिंग पर्सन है, जिससे आपकी ऑन एंड ऑफ कुछ होता रहता है, तो ये वाला प्रैक्टिस आपको करते रहना है. आप उसकी फोटो लेके कर लो आप, ठीक है. आपको फोटो नहीं लेना है तो उस जन के बारे में आप 10 चीजें लिखते रहो. मैंने पिछले सेशन में शेयर किया था कि आई हैड अ क्लाइंट, अ वेरी चैलेंजिंग क्लाइंट. तो उसने मेरे को काफी कुछ अच्छी बातें बोली, तो आई वाज लाइक रियली अपसेट. सो देन आई थॉट व्हाट कैन आई डू, ईदर आई लीव द जॉब, leave that project, return the money, or I do gratitude. So I started doing gratitude, and trust me, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था. I wrote 30 things about that client. 30. आप सोच रहे हो ना कि कैसे, जैसे अभी श्वेता ने शेयर किया ना, fake it till you make it. मेरे को उनके बारे में कुछ नहीं पता है. It's just a client. And I just kept writing that he's such a wonderful father, he's such a wonderful husband. Must be. या लिखते गए. एंड ट्रस्ट मी, नेक्स्ट डे से क्लाइंट एकदम ठीक था. तो अब तो ऐसा हो गया कि वो क्लाइंट अच्छे रहे. हाँ, आई हैव मेनी क्लाइंट्स, नॉट जस्ट वन पर्टिकुलर क्लाइंट, बट कोई क्लाइंट्स के संग जैसे हो जाता है ना, मे बी उनका मूड अपसेट होगा या मेरा मूड अपसेट होगा, हो सकता है दैट कुछ माने जस्ट कुछ हर्टिंग कुछ बात हो गई. आई राइट अबाउट हिम. जहां हमको लगता है कि हाँ कुछ हो सकता है, आई राइट अबाउट हिम. और ये जो मैजिक मॉर्निंग वाला है, आई डू दैट व्हेनेवर आई एम गोइंग टू द साइट्स. कार से निकलते, इफ आई एम नॉट मेकिंग एनी फोन कॉल्स टू माय मिस्ट्रीज और माय हेल्पर्स और माय असिस्टेंट, आई एम कंटिन्यूअसली थैंकिंग फॉर दैट प्रोजेक्ट, फॉर दैट बिल्डिंग. जैसे उन्होंने बोला ना कि जिस चीज को आप देख रहे हो उसके लिए थैंक यू. आई वाज डूइंग दैट. आई एम लुकिंग एट द बिल्डिंग, थैंक यू दिस प्रोजेक्ट, द प्रमोटर जिसने ये बिल्डिंग बनाई, थैंक यू माय कार हम यहाँ तक आए, थैंक यू दिस रोड, थैंक यू द स्टेप्स. पूरा टाइम आप मन में वो कैसे बोलते जाओ. आप घर पे हो, आप बोले नहीं घर में कैसे करें. आप घर पे हो, आप अपने हस्बैंड से, बेटे से, डॉटर इन लॉ से, किसी से भी बात करने जा रहे हो, स्टार्ट सेइंग थैंक यू इन योर माइंड. इफ यू फील ऐसी कुछ बात जिससे आपको रिलेशन अच्छा करना है, just look at that person and keep saying thank you, you are such a blessing, thank you take care of my son. अगर आप डॉटर इन लॉ के बारे में बोलो थैंक यू, आप बच्चे के बारे में बोलो थैंक यू, आर द एप्पल ऑफ माय आई. जो आपको रीजन समझ में आए आप उसके लिए थैंक यू बोलो, ठीक है. थैंक यू आर परफेक्टली हेल्दी. कुछ नहीं समझ आता, अप्रिशिएट द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सन इन योर माइंड, नॉट सामने. जस्ट कीप सेइंग थैंक यू एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर. बिकॉज बुक ने बोला ना, फर्स्ट चीज ये कि व्हेन यू आर डूइंग द ग्रैटिट्यूड यू विल स्टार्ट फीलिंग हैप्पी, ठीक है. एंड व्हेन यू आर ऑलरेडी फीलिंग हैप्पी, ऐसा होता है ना, लाइक व्हेन यू आर हैप्पी, तो क्या होता है ना कि वो कुल्हड़ की चाय तो ऐसे अच्छी लगती है, कभी कभी गंदी भी लगती है. तो बिकॉज ऑफ द कंपनी, बिकॉज ऑफ द वे यू आर फीलिंग, यू लाइक एवरीथिंग, है ना. कुछ गंदा भी होता है, देन यू आर ओके. कैसे आप कहीं हॉलिडे पे गए हो, आप अच्छे मूड में हो, तो ढाबे में भी जाके मिर्ची का भी खाना, तब आप सोचते भी नहीं हो हाइजीन के बारे में, यू जस्ट हैप्पी दैट यू आर ऑन अ हॉलिडे. या तो आपको वैसी ही फीलिंग आने लगेगी, ठीक है. तो दैट इज व्हाट विल take you ahead and make you happier and everyone around you happier. एक लाइन थी, आश्विन मैम ने पहले बोली थी, चिंता सताए कॉपी उठाएं. मतलब आपको जिस भी चीज के बारे में स्ट्रेस हो, मैंने उसको ऐसे चेंज किया, व्हाई स्ट्रेसिंग, फाइंड ब्लेसिंग, ठीक है. जो आपको मैंने लाइक मेक इट अ कोड फॉर यू, कि जब आपके मन में डाउट आए कि लगे कि क्या हो रहा है लाइफ में, कैसे होगा, क्या होगा, जस्ट स्टार्ट राइटिंग ग्रैटिट्यूड. जिसके बारे में भी लिखना है बस लिखते जाइए, जो अपन ब्लेसिंग्स लिखते हैं, जस्ट स्टार्ट राइटिंग दैट. Yeah, and a very close friend of mine, I really like her, she shared कि हम लोग अगर हिंदी में बोले इसको ना कि हम कितने भाग्यशाली हैं. सच अ नाइस वर्ड ना. अभी कोई हम कितने ब्लेस्ड हैं, एक बोल रहे हैं और एक बोल रहे हैं कि भाग्यशाली, दोनों में कितना डिफरेंस आ जाता है. स्टार्ट थिंकिंग ऑफ सच वर्ड्स एंड स्टार्ट फीलिंग हैप्पियर. ओके, आई तो रियली लव दिस कि चिंता सताए कॉपी उठाएं. आप मन में नहीं बोल रहे, बेस्ट होता है लिखना, क्योंकि आप मन में थैंक यू बोलते बोलते कुछ और भी सोचने लग जाते हो, फोन भी उठा लेते हो, उसमें व्हाट्सएप मैसेज भी देखने लगते हो. तो व्हेन यू आर एक्चुअली राइटिंग यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ पॉजिटिव्स. ओके, सो स्टार्ट दिस प्रैक्टिस. एनीथिंग दैट इज not okay with you, just write it out. Just write it out. Thank you so much. And there's one more thing.
after, before every dream, should we write thank you 3 times, or the my dreams thank you, thank you, thank you will be the topic वैसे? नहीं, अभी तो देखिए आप बिकॉज आप सेशन एक कर चुके हो ना सविता जी, या तो आपको ये पूछना नहीं चाहिए था फर्स्ट, आपको पता होना चाहिए था। और जो लोग न्यू है, नॉट टू कंफ्यूज देम और एनीथिंग, अभी आपको सिर्फ ड्रीम लिखनी है। अब उसको आगे क्या करना है, पीछे क्या करना है, वो हम लोग बात करेंगे। अभी तो हमको पता होना चाहिए कि हमको चाहिए क्या। ठीक है, हमको गाड़ी चाहिए तो कौन सी चाहिए, कौन से कलर की चाहिए, ठीक है, कितने जन बैठेंगे उसमें, आप चलाओगे कि ड्राइवर चलाएगा। अभी आपको ये लिखना है। आपको घर चाहिए, कैसा घर चाहिए, यू नो बालकनी है उसके अंदर, यू नो अभी ऐसा लिखना है। आपको रिलेशन अच्छा चाहिए तो कैसा चाहिए वो लिखना है। ठीक है, हेल्थ में इंप्रूवमेंट चाहिए तो अभी आपको ध्यान देना है कि आप उसमें सिर्फ वही लिख रहे हो जो आपको चाहिए, नॉट कि मेरे को ये पिंपल फ्री स्किन नहीं लिखना है हमको। ठीक है, आई वांट अ क्लियर स्किन। हाँ, ये नहीं लिखना है कि डार्क सर्कल चले जाए, नहीं लिखना है ऐसे। ठीक है, कि मेरा चश्मा चला जाए, ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, आपको लिखना है परफेक्ट विजन, क्लियर स्किन, ब्राइट एंड शाइनी आईज, ऐसी लिखनी है। टू राइट व्हाट यू वांट। Yeah, I'm writing that only. I'm asking before every dream. Should we write thank you 3 times? I will tell you on day 13. ठीक है? Okay. Because others will get confused and I'll get more messages about the dreams. ठीक है? Okay, okay. Yeah. So that we will discuss on day 13. Yeah. Okay. Okay. So any other question? I have a question. No, thank you so much. How much time does it take to write blessings in the morning, which we have to write? See, it depends on you. And there are times when I've never actually seen the time, okay? But there are times कि मेरी 2 ही लाइन में हो जाती है ब्लेसिंग। समटाइम्स मेरे को जब ज्यादा रीजन लिखने का मन हो रहा होता है, देन इट्स लाइक 3-4 लाइंस। सो इट्स टोटली ऑन यू, उसमें कुछ टाइम नहीं है। यू कैन, इफ यू आर राइटिंग इन अ वेरी नाइस हैंड, यू नो अच्छे से आराम से सोच के, so how much time you want in the morning for writing your blessings? Just say it in advance. Half an hour, na? Okay, how much time is everyone taking in writing their dreams? Not dreams. Sorry, blessings. 10 minutes. I think 10 minutes ही लगता है। 10 to 15 minutes. हाँ, yes, true. एकदम सुबह उठते ना तो ऐसे वो शुरू में होगा थोड़ा ऐसे। Yes, शुरू में no, I should not be laughing. Everyone takes only 10 minutes. So, but you have to write very fast. मेरे को मतलब बहुत ऐसे हुआ कि today I had an interview, I got up late, फिर मुझे blessings भी लिखनी थी, फिर I was looking at the clock all the time also and writing also, so it became very, मेरे मन में था तो थोड़ा लास्ट actually 10 to 15 ही लगता है, but I've gone through this initially when I would start my like morning time is like, you know, workout भी करना है, ये भी करना है, a lot of things that I want to do in the morning. So शुरू में मेरे को भी लगता था कि कितना टाइम लगेगा, and I kept looking at the watch. Then I stopped looking at it, okay, and then it was perfectly fine. That is why I don't know कि कितना टाइम लगता है, but बहुत ज्यादा नहीं लगता है अब। So with practice it reduces, I'm assuming. Because you know, then you know क्या लिखना है। अच्छा, like आज जब हम मैजिक डस्ट का चैप्टर था, so I was actually thinking of all the help that I got right from the childhood. I remembered one cook of mine, है ना, and छोटे में एक help आती थी उसके बारे में। I actually wrote about all of them. So you know, if you feel that you know आपको नहीं समझ में आ रहा है किसके बारे में blessings लिखो, तो you can just reflect and start thinking, reflect on your life from your childhood कि हाँ ये थे घर में, ऐसे जन थे, कोई अंकल है, कोई आंटी है, उन्होंने आपको कुछ लाके दिया होगा। Just start writing about them, क्योंकि जितना ज्यादा पुराना का gratitude हम लोग करेंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, वो जो रूट्स है ना, वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी और उतने ही अच्छे उसमें फल आएंगे। जस्ट रिफ्लेक्ट, गो बैक इन योर चाइल्डहुड एंड स्टार्ट राइटिंग मोर एंड मोर, फाइंड मोर एंड मोर ब्लेसिंग्स, है ना। वी डिस्कस्ड इन द, यू नो, समवन आस्क्ड क्यों लिखना है, मन में ही लिख लेते 10 चीजें, क्यों लिखना है, ज्यादा क्यों सोचना है। सो यू विल रीड अबाउट दैट चैप्टर कि जितना ज्यादा आप ओशन के अंदर जाओगे, राइट, वहीं पे फिशेस मिलती, दे आर नॉट डूइंग, यू नो, फ्लोटिंग ऑन द वाटर, वो तो पानी के अंदर ही रहती है ना। तो जितना ज्यादा आप पास्ट में जाके ब्लेसिंग्स ढूंढ के लाओगे, ठीक है, उतना और अच्छा रहेगा। वरना आप रोज सेम ही लिखोगे। इफ यू आर राइटिंग द सेम, या देन थिंक अबाउट डिफरेंट रीजंस टू बी थैंकफुल फॉर। Okay, it's not that I'm so grateful for my mama because she loves me, I'm so grateful for my papa because he cares for me. Nahi, how does he care for you? How does your mama love you? What makes you feel that she loves you? Think about all those reasons, think a little more and write about that. Okay, that's what I feel. Think about your, you know, एक टीचर होंगी जो आपकी फेवरेट होंगी, write about her,
ठीक है, लाइक जो भी आपको याद आए जस्ट थिंक एंड राइट अबाउट दैट. या ठीक है, देन हाँ, बट तरिनी इफ यू फील ऐसे ही हाफ एन आवर लगता है देन डोंट गो सो डीप इन द पास्ट. ठीक है, जो अभी आप जस्ट स्टार्ट गेटिंग इनटू द प्रैक्टिस. ओके. या I think morning blessings is my या इट हैज ऑलवेज बीन. संडे को छुट्टी कर लें. आई वाज लाइक व्हाट, संडे. या यू हैड ओनली आस्क्ड ना, संडे भी लिखना होगा. या ओके. सो उसका रीजन है पता है. I told my mom, I'll share it with you also. So I have taken a calendar book, diary. तो उसमें क्या होता है कि with the work diary, तो संडे का ऐसे 4-5 लाइन का ही होता है ना, तो I have to always attach a page. तो मुझे वो, so it was just a stupid barrier. I've crossed it. Okay, very nice. That's why you know I always prefer writing in this long book. You know, मेरे को इसी में लिखना अच्छा लगता है. I write in that. कभी नहीं सोचते हैं कि मुझे बहुत स्कूल की याद आती है इससे. हाँ, मुझे बहुत स्कूल लगता है. School. Everyone loves their school, नहीं? Everyone loves their childhood, right? Yeah. Not to study in it, like the fun part. Okay. For me, no, I don't know. See, whatever is like, you know, whatever is your coffee, I would say. I will not say whatever is your poison. Whatever is your coffee, जो अच्छा लग रहा है वही करना चाहिए. Yes. तो Thank you. Thank you for your question and sharing. And dreams आपको लिखना है, ठीक है? अभी जैसे भी आप पर लिखने का ये कॉन्सेप्ट है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या है. कि अगर आपको बच्चा बोलेगा ही नहीं कि क्या नाश्ते में खाना है, या हस्बैंड ने बोला ही नहीं कि कहाँ हॉलिडे पे जाओगे, तो आप कैसा सूटकेस पैक करोगे, राइट? समर हॉलिडे पे जा रहे हो कि विंटर हॉलिडे पे जा रहे हो, यू डोंट नो. तो जब तक पता नहीं होएगा तो कैसे होएगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट यू वांट. ओके. सो आई थिंक टुडेज कोई क्वेश्चन, कोई शेयरिंग नहीं है, तो शुड वी कॉल इट. ज्योति जी, यस, थैंक यू. आपने पहले नहीं याद दिलाया, या मेरी गलती, सॉरी. हाँ, प्लीज. No. I was waiting for everybody to just finish their. Yeah. Actually, see, we have a magical morning today. So today, basically, when you showed the first picture, that showed the tub in it. Yes. So I basically have a practice. Like as I get up in the morning, the first thing I go for a shower. Okay. Because I believe that जब उठते हो तो you are like in a negative mode and you take a shower, you're always coming in a positive mode. बोलते कि you शुद्धि करते हैं. It's always believed in our Indian culture that you are taking a shower is always a शुद्धि kind of a thing. So even after you finish your shower, so whatever you are touching is kind of a magical dust. वो बोलते हैं magical touch है. So, and actually that works because basically this is like recent, maybe around 2 or 3 years that I'm following it. I basically do, the first thing is as I get up, I go for my shower. And that gives a real positive aura. I feel I'm just suggesting in the group that you all must try for 2 or 3 days. It really works wonders. Okay. The whole day, it gives you a real positive energy. And I feel even in this book, they're just trying to show that the first thing you can do is like just take a shower and then start your day. Even I think in past we had these people at home who used to take shower, puja path karte the, rangoli, and then they used to start off their day with the daily routine. Yes. So this is what I actually wanted to share about the morning magic. Okay. Yeah. Okay. Let's see. Hi, Priya. Yes. Hi. How are you? Sandhya. Good. Yes. Good. Acha, I used to take so many years I did morning bath, but since I think 2-3 when children are gone and now we both are here, so now I get up late. Late means 6 o'clock, 6:30 is late. Okay. Otherwise, 5 o'clock I used to get up early morning and I used to take a bath and started doing deep diving. हाँ, और मतलब सब कुछ अभी बहुत डिफरेंट हो गया. पहले तो बहुत मुझे लगता मैं बहुत सिंसियरली हर चीज करती थी, अब उतना नहीं करती हूँ. So I take 11 o'clock, 10 o'clock bath. Otherwise, I used to take 5 o'clock early morning. उठने के साथ पहले नहाना है, उसके बाद पूजा करना है, फिर काम करना है. ओके. ओके. एंड मुझे बहुत सालों से ड्रीम्स बंद हो गए थे. तो अभी ऐसे 1-2 दिन ऐसा लगा कि हाँ कुछ थोड़ा सा ड्रीम आ रहा है. ओके. ओके. तो मतलब लाइक हाँ,
I have not understood. I don't know about dreams. Okay, मेरे को नहीं पता dreams होता है तो I always Google ये सपना आया तो इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, I do that. तो मेरे को ऐसा dreams का मेरे को नहीं पता कोई significance. Sorry, हाँ. नहीं, मुझे बहुत सालों से कुछ मतलब ड्रीम बहुत सालों से कुछ भी नहीं आ रहे थे. आई थिंक शादी से पहले मेरे बहुत सारे ड्रीम्स थे और बहुत सारे ड्रीम्स मैंने फुलफिल किए. बट आफ्टर मैरिज स्लोली ग्रेजुअली ड्रीम्स खत्म हो गए. तो आई थिंक that way dreams. Okay. दैट वे ड्रीम्स कि वो जो ड्रीम्स होते हैं ना चाहिए जो basically yes. What you want to have, what you want to do. Desires. Yeah. डिजायर्स एंड ड्रीम्स. तो वो सब खत्म हो गए थे. बट जस्ट since few days so I am thinking कि yes ऐसा मतलब वेरी गुड. अब आप कल लिख लीजिए क्योंकि परसों हम लोग देखेंगे कि वो आपको मिलेंगे कैसे. ठीक है, तो पहले आपको लिखना होगा ना, राइट. यू वांट टू हैव पास्ता, तो अब हम लोग परसों उसकी रेसिपी सीखेंगे और बनाएंगे उसको, यू नो. सो इट इज लाइक दैट. इसीलिए आपको बोला जा रहा है आप लिख लीजिए आपके ड्रीम्स क्या हैं. ठीक है, आपको पता होना चाहिए. ओके, यस, थैंक यू. या, वेरी नाइस. Okay, and when you're talking about your dreams, I'm sure it is about your dreams, not कि बच्चे का ये हो जाए, कि हस्बैंड का ये हो जाए, कि बहू ऐसे हो जाए. No, my dream. So I'm talking about everyone. आपका तो हम समझे कि आपके desires and dreams that you know you said शादी के पहले आपको लगते थे. I'm talking about others also. ठीक है, it should be your dreams. ठीक है, हम लोग को बहुत सारी ड्रीम्स लिखनी है लेकिन मेजॉरिटी तो एटलीस्ट आपकी होनी चाहिए. ठीक है, या. Okay, so we start our magical morning tomorrow and आप सब लोग magic rock practice कर रहे हैं. Yes, yeah, okay, thank you. Chaitra, तो I know even Adil is doing. Yes. मम्मा is saying कि हाथ में लेते ही उनको नींद आ जाती है. तो awesome. Yes, excellent. ठीक है, good change for her. अभी कल क्या करना है अपने? हाँ, आज पूरा चैप्टर हम लोगों ने 1 घंटा ये डिस्कस किया. कुछ नहीं लिखना, कल छुट्टी है लिखने की, सिर्फ ब्लेसिंग्स लिखनी है. ठीक है, तो रोज ही लिखते हैं अपन. हाँ, बस तो वो रोज ही लिखनी है अभी. और कल हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है अनलेस आपको कोई रिलेशनशिप इंप्रूव करना है या ड्रीम्स नहीं लिखी हैं तो आपको ड्रीम्स लिखनी है. दैट्स इट, नो अदर रिटन वर्क. ओके, या कल ड्रीम्स अपडेट कर लेंगे ना, जो गलत लैंग्वेज लिखी है वो ठीक कर लेंगे. हाँ, यस. छाया जी को भी बता दीजिएगा, शी आल्सो वांट्स टू लर्न, राइट छाया जी? यस. हाँ, सिंपल क्या था आपका? सिंपल कंटिन्यूअस. हाँ, आपको जो भी कंटिन्यूअस लगना आप लिख लीजिएगा. ओके, या. ओके, so thank you everyone and good night. See you tomorrow. Thank you. Okay, have a wonderful magical. Thank you. Yes, thank you. Good night. Thank you, Priya. Thank you so much. Thank you.